हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू सेशन नंबर 8 ऑफ आवर इनकम टैक्स रिवीजन कम अमेंडमेंट कम प्रॉब्लम क्लासेस. तो गाइस, टुडे इज सेशन नंबर 8. सेशन नंबर 8. यस गाइस, एंड क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर रिवाइजिंग, वी आर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स and your problems for 2021 exams, and this is a revision of the direct tax portion. Once it gets over, then I intend to start with indirect taxes, that is GST and customs. So guys, first of all, we have completed we have completed 7 sessions. Before these sessions, we have completed 7 sessions, and in these sessions we have covered approx 80 to 85% of the syllabus of the subject of direct taxation. And now today's agenda, yes guys, today's agenda, I'm going to discuss taxation of company, taxation of company, taxation of firm, taxation of AOP, BOI. Yes, my dear friends, and one more topic I'm going to discuss, that is in fact returns and assessments. So guys, in fact 4 topics I'm going to revise today. One is company taxation, corporate taxation you can call it, taxation of firm, AOP, BOI, firm, AOP, BOI, filing of returns, we call it ITR, income tax returns, and assessments. Yes. So today is our second last session of the subject of direct tax. Today is our second last session, and tomorrow's session, that will be session number 9. I'm going to complete all the remaining topics relating to the subject of direct tax oblique income tax. So in 9 sessions, approximately 18 plus hours, we have revised the syllabus along with the amendments. So guys, now one more thing that you need to do is you need to download the notes of today's session. Yes, that is given in the description box. That is given in the description box. Kindly download the notes. What I intend to do after the tomorrow session is, what I intend to do is, I'm going to combine all the 9 lectures and I'm going to combine all the notes so that at a one place you have everything at your disposal. And this is equally valid for your December examinations also. Yes, सर अभी जुलाई के एग्जाम्स का तो पता नहीं है क्या होगा, but let us see what happens. What I mean to say is these amendment revisions will also be applicable for December exams. That's the reason I call it 2021 exams. So I call it 2021 exams. So if any amendments comes after 2, 3, 4 months, then I'll take some amendment lectures so that these are updated. So for 31st December, in fact sometimes December exam can be extended to January next year also. Don't worry, this is for assessment year 21-22. Yes, this is for assessment year 21-22. So guys, now let's start the show. As always, you have given me a lot of support and got a lot of love. It means a lot. So I'm going to start with the first topic today, that is taxation of company. Yes, my dear friends, any problem of yours, you can put it in the chat box and I'll really love to solve them and love to hear from you. So guys, taxation of company as per definition under section 2 clause 31 of the term person, it includes 7 categories. It includes 7 categories. And yes, my dear friends, out of the 7 categories, company is one of them. The term company is defined under section 2 clause 17. The term company is defined under section 2 clause 17. Yes, which includes on a broader sense Indian company
as well as a foreign company. Yes, though it includes statutory corporations and all, that is defined under the term Indian company. और Indian company की परिभाषा 226 में दी हुई है. इंडियन कंपनी की जो डेफिनेशन है वो 226 में दी हुई है, जिसमें लिखा है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और प्लस इंक्लूड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. Statutory corporations, which is like ICAI, ICSI, RBI, LIC. So to summarize in a nutshell, भैया कंपनी एक सेपरेट कैटेगरी है. पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 के अंतर्गत, कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 17 जिसमें इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी दोनों आती हैं. यस, और इंडियन कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 26 which includes companies incorporated under the Companies Act. Yes, my dear friends, incorporated the Companies Act and statutory corporation. In fact, there are other ways of defining companies under the Income Tax Act, like a closely held company. ये हमने किया other sources में, closely held company and a widely held company. Widely held company. Yes, और widely held company कहाँ डिफाइन था? 2 क्लॉज 18 में. और जो 218 में नहीं आया उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी. तो जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कॉल पार्टिसिपेशन, पब्लिक, प्राइवेट. तो सिमिलरली हमारे इनकम टैक्स में कंपनीज को भी अलग अलग बेसिस पे विभाजन किया जाता है. इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी. बट एक बात याद रखिएगा, जब हम टैक्स रेट की बात करेंगे बच्चों, जब हम टैक्स रेट की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे वर्ड डोमेस्टिक कंपनी, यस, एंड फॉरेन कंपनी. अब आप बोलोगे सर डोमेस्टिक कंपनी बोला, डोमेस्टिक कंपनी बोले तो, अरे बच्चों डोमेस्टिक कंपनी बोले तो इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी बोले तो इंडियन कंपनी, या एक ऐसी विदेशी कंपनी जो इंडिया में अरेंजमेंट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. और अरेंजमेंट्स का मतलब जैसे शेयर होल्डर का रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना, सारे शेयर होल्डर्स को इंडिया में डिविडेंड देना, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स इंडिया में कंडक्ट करना. तो ऑन अ ब्रॉडर सेंस माय डियर फ्रेंड्स, डोमेस्टिक कंपनी में देसी कंपनियां तो आती ही हैं और फॉरेन कंपनीज भी आती हैं, फॉरेन कंपनीज जिन्होंने इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अरेंजमेंट किया. तो गाइस ये कौन सी फॉरेन कंपनी हुई? ये वो फॉरेन कंपनी हुई जो इंडिया में अरेंजमेंट नहीं कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. अब आइए, क्या टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के? गवर्नमेंट कहती है भाई हमारा असेसमेंट ईयर बताइए कि क्या है, बताइए. याद तो होगा हमारा असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22. यस, तो 21-22 का प्रीवियस ईयर क्या बोले तो 20-21. अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? 18-19 की टर्नओवर, 20-21 की टर्नओवर नहीं, 18-19 की टर्नओवर 400 करोड़ तक है उस डोमेस्टिक कंपनी की, तो टैक्स रेट होगा 25%. यस. अच्छा, 115 बीए में कवर्ड है कंपनी, 25%, BAA में कवर्ड है 22%, और BAB में कवर्ड है ये 15%. ये आपके ना स्पेशल केसेस है, ये स्पेशल केसेस, जस्ट लाइक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन. दीज आर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन, ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन. ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन अब आपको पता ही है इंडिविजुअल HUF में भी आ गया. बोले तो कौन सा सेक्शन? 115 BAC, 115 BAC. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी आ गया 115 पैड, BAD. तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा रूबरू मैं आपको करवाऊंगा. और सर सरचार्ज क्या होगा मैं बताऊं? इसके अलावा यहां पर लिखिए अदर डोमेस्टिक कंपनी, अदर डोमेस्टिक कंपनी, और यहां पर लिखिए 30%. लिखिए अदर डोमेस्टिक कंपनी 30%. हाँ जी, तो एक बार नंबरिंग दे दें भैया. ये नंबरिंग हो गई 1, ये नंबरिंग हो गई 2, ये नंबरिंग हो गई 3, ये नंबरिंग हो गई 4, ये नंबरिंग हो गई 5. अब सरचार्ज की बात करें, BAA कंपनी और BAB वाली कंपनी, यानी कि नंबर 3 वाली और नंबर 4 वाली,
नंबर 3 वाली और नंबर 4 वाली। टोटल इनकम 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, फ्लैट सरचार्ज 10%, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हमने ऑलरेडी आपका टैक्स रेट कम कर रखे हैं, 22 और 15 कर रखा है, सरचार्ज 10। अदर कंपनी गाइस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 5। सर कौन कौन सी? सुनिए सर, देखिए बच्चों, नंबर 1 ये वाली कंपनी, नंबर 2 ये वाली कंपनी, यस, और नंबर 5 ये वाली कंपनी। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, 7%, और 10 करोड़ से ऊपर बच्चों 12%। फॉरेन कंपनी पे जो रेट ऑफ नॉर्मल इनकम टैक्स है वो है 40%। और सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर अगर टोटल इनकम जाती है 10 करोड़ तक 2%, और 10 करोड़ से ऊपर 5%। ऑब्वियसली दोनों ही जगह मार्जिन रिलीफ की तैयारी करना, अगर कुछ इनकम 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है या 10 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, वहां पर मार्जिन रिलीफ की तैयारी हमें करनी पड़ती। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये टैक्स रेट, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। स्पेशल रेट के टैक्सेस 111 है, 112, 112 है, वो नॉर्मल चलेंगे, वो सभी के लिए सेम है। तो यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी प्यारा सा स्टार लगाइए और इधर भी स्टार लगाइए और लिखिए रेट ऑफ स्पेशल टैक्सेस, रेट ऑफ स्पेशल टैक्सेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, as applicable, rate of special taxes as applicable, rate of special taxes as applicable, yes। आइए, अब मैं बात करने वाला हूं कंपनीज के ऊपर मैथ का कॉन्सेप्ट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, MAT। इनफैक्ट ये शायद मैथ को लगे 18, 10, 30 साल के आसपास मैथ को लगे हो गया है। एक हाथ से हमारे इनकम टैक्स में गाइस लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस, लॉट ऑफ डिडक्शंस हैं, लेकिन दूसरे हाथ पे हमारे टैक्स रेट्स भी बड़े हाई हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस, लॉट ऑफ डिडक्शंस एंड द टैक्स रेट्स आर हाई। एंड यू नो इंडियन ब्रेन्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी हैव दैट जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कुछ साम ताम दंड भेद से कुछ ना कुछ हम जुगाड़ करके टैक्स बचा ही लेते हैं। तो सरकार को गुस्सा भी आता है एक तरीके से कि आप इतने बेनिफिट्स, इतने एग्जेम्पशंस, इतने डिडक्शन ले जाते हैं और टैक्स कुछ बचता ही नहीं है, यानी कि टोटल इनकम बिल्कुल ही शून्य के आसपास कर लेते हैं और टैक्स देते नहीं है। तो उसी दर्द से ये मैट का जन्म हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि भाई इतने डिस्काउंट्स, इतने रिबेट्स, इतने एग्जेम्पशन, डिडक्शन ले लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ मैट आज से लगभग 30 साल पहले। और उसमें क्या लिख दिया, टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, गवर्नमेंट लोअर नहीं करेगी, हायर करेगी। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल टैक्स जो आप अपनी नॉर्मली इनकम पे निकालते हैं, यस, जो नॉर्मली इनकम पे निकालते हैं वो ले लीजिए टैक्स, जैसे आपने सीखा अभी तक। या फिर और, यस माय डियर फ्रेंड्स, और टैक्स कंप्यूटेड एट 15%। यस, बेसिकली मैं ये बोल दूं एक्चुअल टैक्स और डीम टैक्स। तो नॉर्मल टैक्स को मैं एक नाम दे रहा हूं एक्चुअल टैक्स, और मैट को मैं एक नाम दे रहा हूं डीम्ड टैक्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, डीम्ड टैक्स विच एवर इज हायर। जैसे गाइस वी आर आस्किंग फॉर अ, you want some classes from us, or we are asking for a fees of 20,000, but some promotional schemes are going on and we are providing you some discounts. Up discount does not mean you want to make the fees total zero. You take discount of 10%, 20%, 30%, we can understand, but 4-5 coupons of other persons you connect together and say now we have attached all the coupons and the fees become zero. It will be like we also have to run our families, so we also have to run our business. तो थोड़ा सा हमारी कंसिडरेशन, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई अगर इतनी डिडक्शन, इतनी एग्जेम्पशंस ले जाओगे तो भाई फिर हम क्या, देश कैसे चलाएंगे। तो ये डीम्ड टैक्स है, और डीम्ड टैक्स क्या है, डीम्ड इनकम, डीम्ड टैक्स रेट। तो डीम्ड टैक्स रेट को मैट रेट कहते हैं, तो वो है 15%, 15%। और जो डीम्ड इनकम होती है उसको बुक प्रॉफिट कहते हैं। सो बुक प्रॉफिट, माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइड बाय मैट रेट, दिस इज
deemed tax. This is deemed tax. And actual tax, you know, your total income multiplied by your actual tax rates. Your actual tax rates. So this is your, yes, actual tax. So actual tax is total income multiplied by actual tax rates. And my dear lovely friends, your deemed tax rate is, your deemed tax is book profits into MAT rate. MAT rate is very simple, it is 15%. Sir, if a book profit exceeds 1 crore, book profit exceeds 10 crores, will you apply the surcharge? Just like surcharge is added for your actual total income, surcharge is hubahu same, it is same. Yes, and will you apply health and education cess on the deemed tax? Just like same, but just for the time being, you assume your total income is substituted by the book profit. Your total income is substituted by the book profit and your actual tax rates is substituted by the MAT rate. Surcharge and cess is normally applicable and whichever is higher. But guys, there is some incentive. If you have a unit in the International Financial Service Center, the rate of MAT instead of 15 will become 9% and the unit of IFFC is deriving his income solely in convertible foreign exchange. In that case, you know, the MAT rate will be 9. Will MAT rate apply to public company, private company, Indian company, foreign company? Every damn company it will apply. In fact, it will also apply to 1% company. Yes, my dear friends, widely held, closely held, foreign, Indian, it is applicable on all companies. Yes, my dear friends. Next, MAT is not applicable on what type of companies? Are there any exceptions? Yes, life insurance companies, shipping companies which are paying tax under tonnage taxation scheme, and the companies covered under BAA and BAB. You know, BAA paying tax at 22% and BAB paying tax at 15%. They are already subject to surcharge of 10%. There is no MAT rate. This is an incentive by the government. If a domestic company is covered under BA and BAB, then 22 and 15% tax rates are there and there is no MAT liability. Now the most important thing which children, you know, are really very confused is how to compute book profits. So what I have given is a table which will help you to understand what additions and what subtractions need to be done. So kindly go slow with me. And today we don't have many topics: taxation of company, taxation of other person like firm AOP, assessment and returns. So we have approx 2 hours to go and we are going to finish that. And tomorrow, in the next session, that will be the 9th session, you know, we'll finish off the entire income tax or the direct tax levels. So book profits, how do you compute book profits? Guys, you start with the net profit. As shown in the statement of P&L prepared as per Schedule 3 to the Companies Act 13. Guys, your starting point is your net profit, which you have prepared as per the P&L account, which you lay before the shareholders as per Schedule 3 of the Companies Act. वो जो एक्चुअल इनकम होती है उसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट सेक्शन 28 से 44 के हिसाब से निकाला जाता है जब हमने पीजीबीपी किया. लेकिन यहां पर गाइस जो आपका स्टार्टिंग बिंदु है वो है नेट प्रॉफिट कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 के हिसाब से. उसमें क्या लिखा है? इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय सर्टेन आइटम्स. तो यू नीड टू add something to the net profit and you need to subtract something to the net profit. And what is that net profit? बोले तो net profit is Companies Act का profit. Yes, my dear friend, Schedule 3 के हिसाब से. अब एडिशन की बात करें. ये सारी चीजें प्लस होंगी. कितने आइटम प्लस होंगे सर? अरे बच्चों, आइटम कितने प्लस होंगे नोट कर लो. 16 आइटम प्लस होंगे. और सर माइनस कितने आइटम्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली 12 आइटम माइनस होंगे. तो 16 और 12 28 आइटम्स याद करनी है. बस इसी में टेंशन है आपको. आइए जरा, अब इसमें करना क्या है, आइए, कोई टेंशन नहीं, आइए. सो एडिशंस टू नेट प्रॉफिट. अब आपको प्रॉफिट में कुछ ऐड करना है, लेकिन ऐड जब करना है इफ द फॉलोइंग अमाउंट्स आर डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट. तो शेयर होल्डर के पास वो है ना, एजीएम में रखा जाता है ना पीएनएल अकाउंट, शेड्यूल 3 वाला जो पीएनएल अकाउंट बनाया गया है.
उसमें अगर ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं, ऑलरेडी डेबिट, already debited, then add back. Yes, already debited, then add back. If they have not been debited, then don't add back. ये नोट कर लो, लिख लो. If already debited, then we add back. हाँ जी, क्या क्या ऐड करना है? पहला है अमाउंट कैरी टू रिजर्व्स. अमाउंट कैरी टू रिजर्व्स. यस, अगर आपने रिजर्व्स के अंदर कोई पैसा डेबिट किया है पीएनएल अकाउंट के अंदर, वो ऐड बैक करिए, क्योंकि उससे आप प्रॉफिट का कम कर लेते हो. और शिपिंग बिजनेस और वट एवर इट इज नॉट टू बी डन. आप खाली याद रखो, जो भी रिजर्व के लिए आपने डेबिट किया है वो ऐड बैक करो. मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूं सो दैट क्लैरिटी रहे. ठीक है. एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम्स कवर्ड अंडर 10, 11, 12. 10, 11, 12 में एग्जेम्पशंस होती हैं. तो एग्जेम्प्ट इनकम के खर्चे अगर डेबिट हुए हैं क्रेडिट कर दो. डिविडेंड पेड और प्रपोज टू बी पेड, अगर कोई डिविडेंड के लिए आपने प्रोविजन बनाया है या डिविडेंड पे कर दिया है और वो डेबिट हो चुका है तो ऐड बैक कर दो. डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स प्रोविजंस. इनफैक्ट अगर डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स प्रोविजन लिखा है तो यहां पर माइनस करते वक्त एक बार डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ लिखा है. हाँ, तो यहां पर डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स प्रोविजन की जगह मैं बोलता हूं टोटल डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, जो भी अगर आपने डेबिट किया है. तो मैं इस लाइन को यहां से डिलीट करके आपको बोलूंगा टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी डेबिट हुआ है एक बार तो ऐड कर दो, क्योंकि हम सही तरीके को जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो माइनस में जाएगा. तो वट एवर डेप्रिसिएशन यू हैव डेबिटेड ऐड बैक. ठीक है. टोटल, वेदर वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वट एवर इट इज या रीवैल्यूएशन. बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व relating to the revalued asset on retirement or disposal of such asset. ये चीज याद रखना, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है, वो जिस साल एसेट रिटायर हो जाती है या यूज का बंद हो जाता है या डिस्पोज कर देते हो, उस साल रीवैल्यूएशन का रिजर्व का अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट होता है. तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 5, ये एक्सेप्शन है. यहां पर एक्सेप्शन टू दिस कॉन्सेप्ट 5वां, यानी कि अगर ये डेबिट हुआ है तो ऐड बैक नहीं, ये ऐड बैक करना है. हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये सब चीजें माइनस हुई हैं प्लस कर दो, माइनस हुई हैं प्लस कर दो, माइनस हुई हैं प्लस कर दो, माइनस हुई हैं प्लस कर दो. ये माइनस नहीं हुआ, ये प्लस करना है. अगर नहीं हुआ है तो समझेगा. तो ये पॉइंट को मैं अलग कर दूंगा. तो बैलेंस जो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में है, एसेट जिस साल रिटायर हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, डिस्पोज कर दिया जाएगा, उस साल रीवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट प्लस कर देना चाहिए. अगर प्लस नहीं हुआ है तो यहां पर लॉर्ड डेफर्ड टैक्स अगर माइनस हुआ है प्लस कर दो. ये डेफर्ड टैक्स कब अराइज होता है गाइस? क्योंकि इनकम टैक्स में खर्चे अलग होते हैं और नॉर्मली खर्चे अलग होते हैं. तो उन खर्चों के डिफरेंस के कारण कभी टैक्स लायबिलिटी इस साल ज्यादा आएगी, कभी टैक्स लायबिलिटी अगले साल ज्यादा आएगी. तो वो डेफर्ड टैक्स के हम प्रोविजंस डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं. डेफर्ड टैक्स एक एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी है जो आगे अराइज होगी तो दैट बैलेंस हो जाए. तो वो डेफर्ड टैक्स अगर डेबिट हुआ है प्लस कर दो. इनकम टैक्स पेड, पेएबल और प्रोविजन. इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है, पेएबल है, प्रोविजन है, वो भी ऐड बैक कर दीजिएगा. However, income tax penalty or is interest penalties under other law need not to be added. हाँ, अगर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पेनल्टीज हैं, इंटरेस्ट है, अदर लॉ की पेनल्टीज हैं, वो ऐड बैक नहीं होंगी अगर माइनस हुई हैं तो. ये माइनस हुई हैं तो प्लस रहेंगी, ये सब चीज माइनस हुई हैं तो इनको प्लस नहीं किया जाएगा. प्रोविजन ऑफ लॉस फॉर सब्सिडीज. सब्सिडीज का लॉस अगर आपने डेबिट कर रखा है तो प्लस कर दिया जाएगा, और अगर एक्चुअल लॉस भी हो, माइनस कर रखा है तो प्लस कर दिया जाएगा. एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनकम being share of taxpayer in the income of AOP BOI on which no income tax is payable under 86. अगर आप मेंबर हैं AOP BOI के और आपको शेयर ऑफ अमाउंट मिलता है AOP BOI से, जो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ, जो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि अभी आज हम करेंगे
एओपी बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे भी टैक्सेबल होती है, एओपी बीओआई स्लैब रेट पे भी आती है, लेकिन मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे भी टैक्सेबल होती है। अगर एओपी बीओआई का शेयर मेंबर के हाथ में जुड़ नहीं रहा तो खर्चे फालतू के डेबिट कर रखे हैं बच्चों, वो ऐड बैक करो। तो अगर एज अ मेंबर ऑफ एओपी बीओआई आपका शेयर जो होता है वो आपकी इनकम इंक्लूड नहीं हो रहा है तो खर्चे कहीं को डेबिट किए हुए हैं, ऐड बैक करो। अच्छा, ये जो नोशनल लॉस है इस पॉइंट को मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको ये सारे पॉइंट्स कवर अप करवा लूं, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले मैं ये वाला पॉइंट कवर करवा लूं, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम ऑफ रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी है 115 बीबीएफ में डिस्क्लोज की है जिसपे 10% टैक्स लगता है ना, तो गवर्नमेंट कहते हैं उसके खर्चे अगर आपने डेबिट कर रखे हैं तो ऐड बैक कर दो। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, अगर आपने माइनस कर रखा है तो ऐड कर दो, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एसेट की वैल्यू गिरेगी तो उसके लिए कोई प्रोविजन है, डेबिट कर रखा है, ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर मीटिंग अनअसर्टेन लायबिलिटी, जिस लायबिलिटी का पता नहीं कितनी की होगी कितनी की नहीं होगी, कोई एक्चुअरियल वैल्यूएशन भी नहीं हुई है, साइन, हाँ अगर साइंटिफिक बेसिस पे पता है होनी ही होनी है, जैसे सुबह के बाद शाम होनी है, शाम के बाद सुबह होनी है, तो प्रोविजन फॉर नाइट बना रहे हो तो नाइट तो होनी है ना, प्रोविजन फॉर मॉर्निंग बना रहे हो वो तो होनी है। तो ऐसे कोई किसी को ग्रेचुटी देनी है और एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से पता इतनी देनी है, फिर हो जाएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा। अगर अनअसर्टेन लायबिलिटी है माय डियर लवली फ्रेंड्स, माइनस कर चुके हैं तो प्लस कर दिया जाएगा। अमाउंट स्टैंडिंग इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व relating to the revalued asset on retirement or disposal of such asset if not credited to a statement of P&L। ये तो हमने भी कर लिया, एक सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, हाँ ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये पांचवा पॉइंट, हाँ मेरे बच्चों, और ये वाला जो पॉइंट है 15, बात एक ही है। मैंने बोला था ना कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में अगर जो अमाउंट है एसेट रिटायर हो गई है, यूजलेस हो गई है, डिस्पोज करनी है, उस साल जो भी बैलेंस है पीएनएल में ऐड कर देना। अगर ऑलरेडी ऐड नहीं है तो, ऑलरेडी ऐड नहीं है, ऑलरेडी ऐड नहीं है, याद रखिएगा। आइए बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताने वाला हूं, देखो कितना सिंपल हो गया मैथ, ऐसे ही डर लगता है आपको बिल्कुल ही बेमतलब में। चलो अब आपको डर नहीं लगेगा। देखो ये 10th और 16th पॉइंट, देखो जी सारे प्लस आइटम हो गए हमारे, इसके बाद बिल्कुल हो गए। अब क्या होता है दोस्तों, एक बिजनेस ट्रस्ट होती है, आपने सुना होगा बिजनेस ट्रस्ट होती है, इसमें वो 111 वाली बात भी आई थी ना, जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बच्चों सुनिए मेरी बात, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में यूनिट्स इशू किए जाते हैं, यूनिट्स इशू किए जाते हैं जो हम इन्वेस्ट करते हैं एज अ यूनिट होल्डर, मैं उन यूनिट्स में इन्वेस्ट करता हूं। मुझे रियल एस्टेट में पार्टिसिपेशन करने का सबसे बड़ा तरीका है बेटा, ये रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती कैसे बेटा, बिजनेस ट्रस्ट एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये बिजनेस ट्रस्ट एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। हाँ इट्स अ कंपनी माय डियर फ्रेंड्स, वी कॉल इट स्पेशल पर्पस व्हीकल क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। व्हीकल नहीं कोई पहिए लगे हुए हैं इसके, इट इज अ व्हीकल मींस फॉर आवर गोल्स। ये कंपनी आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। इस कंपनी के भी शेयर होल्डर्स होंगे, स्वाभाविक है कंपनी है, मेजर शेयर होल्डर्स तो REIT के पास होंगे। अब क्या हो रहा है, ये शेयर्स आप बिजनेस ट्रस्ट को दे रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, शेयर होल्डर्स SPV के शेयर्स सरेंडर कर रहे हैं, सुरेंदर नहीं बेटा, सरेंडर। हाँ, और बदले में यूनिट्स इशू किए जा रहे हैं, आपको इशू कर जा रहे हैं यूनिट्स। हाँ कहानी देखना जरा, बड़ी सिंपल सरल है। बिजनेस ट्रस्ट है जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो यूनिट्स इशू करती है,
अच्छा, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है, और रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। इस एसपीवी के शेयर होल्डर्स को बोला जा रहा है आप अपने शेयर्स हमें हैंड ओवर कर दो, बदले में हम यूनिट्स देंगे। अब ये बात को याद रखिएगा। आइए सर, आइए, नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नोशनल मतलब हुआ नहीं है बदला बदली हो रही है ना, तो जब तो लॉस होना ही स्वाभाविक है। तो लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी टू बिजनेस ट्रस्ट in exchange of units allotted by that trust under 4714। अब आपको जब ये शेयर्स एसपीवी के बिजनेस ट्रस्ट को हैंड ओवर किए, बदले में यूनिट्स मिले। हो सकता है आपने शेयर ट्रांसफर किए 1 करोड़ के और कब यूनिट्स मिले 70 लाख के, तो एक तरीके से लॉस तो हो गया। वो 30 लाख का लॉस नहीं माना जाता, उस एक्टिविटी पे कैपिटल गेन भी नहीं लगता। वो 30 लाख का लॉस अगर डेबिट कर रखा है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, तो वो ऐड बैक कर दीजिए, तो वो ऐड बैक कर दीजिए। अगर वो लॉस शेयर्स ट्रांसफर करने बदले में यूनिट्स मिले, या नोशनल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सेड यूनिट्स। अब यूनिट्स थे, अब यूनिट्स को रखने के कारण कोई लॉस हो गया, यूनिट 70 लाख के मिले, अब यूनिट 40 के रह गए। देखो बेटा, मार्केट प्राइस और चीज का होता है, तो पहले तो आपको लॉस वो हुआ, लॉस जब बोलते ना शेयर मार्केट में, जब तक लॉस जब तक नहीं हुआ जब तक आपने बेचा नहीं ना। 100 का शेयर खरीदा, 60 रह गया, 60 का 40 रह गया, तो लॉस तो जब होता है जब आप उसको बेच दो। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो शेयर्स हैं वो बिजनेस ट्रस्ट को दे दिए, बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, बदले में यूनिट्स दे दिए, तो वहां लॉस खाया। फिर वो रखे हुए थे यूनिट्स, वो और गिर गए, वहां लॉस खाया। वो लॉस जब तक नहीं है जब तक बेचा नहीं, नोशनल है। हम अगर डेबिट कर रखा है तो ऐड कर देंगे, यस। और अमाउंट ऑफ लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, जो भी आपने, अगर आप अब यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए, हाँ अब यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए, जो भी है, अब लॉस हुआ, वो भी गवर्नमेंट कह रही है माइनस कर रखा है तो ऐड कर दो। तो सर अब तो लॉस हो गया, अब क्यों ऐड कर रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है जो भी तुम्हें लॉस तुम्हारे हिसाब से हुआ है, इसका एक्चुअल लॉस हमारी तरीके से कंप्यूट करके माइनस होगा। अब जरा नीचे आओ, हाँ 3 चीजें ऐड बैक करनी है, नोशनल लॉस ऑन द एक्सचेंज, नोशनल लॉस ऑन होल्डिंग्स एंड लॉस ऑन द सेल, नाउ लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। लेकिन यस, आ गया ना बात। देखिए यहां पर आपको मिलेगा एक्चुअल लॉस जो हुआ है, देखें यहां पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, एक सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स। हमें माइनस की बात करनी है ना, हाँ एक सेकेंड बेटा, हाँ ये नोशनल गेन नहीं आएगा ना, ये हमें माइनस की बात करनी, यहां पर ये करेक्शन करिएगा, ये यहां पर नोशनल गेन काट के लिखिए एक्चुअल लॉस। हाँ एक बार तो जो माइनस होगा, ये माइनस वाले आइटम पे आ गया बच्चा पार्टी, वही दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी। आज हमारे पास माल पढ़ाने को थोड़ा कम है, टाइम बहुत है, तो आज आराम से बिल्कुल क्या कहते हैं, इत्मीनान नहीं, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए जरा, क्या यहाँ पर एक्चुअल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, वो यूनिट जो एक्चुअल बेचे, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्सचेंज विद द यूनिट्स रेफर्ड। तो मान लीजिए, हाँ अब जो एक्चुअल लॉस होगा अब डेबिट होगा। तो दोबारा मैं रिपीट करूंगा, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको ये चार्ट समझ आया? सर ये चार्ट समझ आ गया। गवर्नमेंट कह रही कोई लॉस हुआ अदला बदली करने में, शेयर्स के बदले में यूनिट्स मिला, यस। अगर वो नोशनल लॉस है ऐड बैक कर दो, सर ऐड बैक कर दिया। अगर आपने डेबिट कर रखा, यूनिट्स को रखे रखे जो लॉस हो रहा है, सर वो भी नोशनल है, माइनस कर रखा है, ऐड कर दो। सर यूनिट बेच दिए, लॉस हो गया, गवर्नमेंट के जो भी लॉस तुम बोल रहे हो ना एक बार ऐड कर दो, हम सही लॉस माइनस करेंगे, हाँ क्योंकि ये लॉस हमें पता नहीं कैसे माइनस हुआ है। अब गवर्नमेंट कहती है सुनो, एक बार जितना भी डेबिट इस ट्रांजैक्शन का कर रखा है ऐड कर दो। अब आपको हम बोलेंगे आपको लॉस हुआ बेचने पे, हमारी तरीके से कैलकुलेट करो,
हमारी तरीके से कैलकुलेट करो और फिर उसको माइनस करो। तो एक्चुअल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, तो यानी इसका मतलब हुआ सेल ऑफ यूनिट्स, मान लीजिए 70 लाख, और कॉस्ट ऑफ शेयर्स आपके थे, हाँ कॉस्ट ऑफ शेयर्स मान लीजिए 1 करोड़। अब ये 30 लाख का जो लॉस हुआ है ये डेबिट होगा, पता नहीं तुमने कौन सा लॉस डेबिट कर रखा था, कौन सा नोशनल। तो यानी कि अगर तुमने यूनिट्स बेचे 70 लाख के, कॉस्ट ऑफ शेयर 1 करोड़ के थे, तो बाबा रे 30 लाख रुपए डेबिट होंगे। ये लॉजिक बस, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये 16 पॉइंट को छोड़ दो। अब 16 पॉइंट को छोड़ दो, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, 10th पॉइंट भी कवर कर लिया, 12th भी हो गया, और 13 14 हो गए। अब माइनस के आइटम्स पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपने अच्छा सब्ट्रैक्शन थ्रू नेट प्रॉफिट, ये एक सेकेंड बेटा, ये अगर आपने डेबिट कर रखे हैं या नहीं, हाँ इफ क्रेडिटेड टू पीएनएल, यहां पर लाइन लिखो ना, अगर ये पीएनएल में क्रेडिट हुए हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो आपने रिजर्व से कोई पैसा डाला और ये इनकम कवर्ड इन 10 11 12, ये तो एग्जेम्प्ट होती है, प्लस कर रखी है तो माइनस कर देंगे। यस, अब सुनिए मेरी बात, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन whichever is less as per books of accounts, ये वाली जो चीज है ना, ये एक्सेप्शन में आएंगी, यानी कि ये वाली चीज डेबिट होगी, यानी कि ये हमारी प्लस थी माइनस हो गई, नहीं, ये माइनस करनी है अगर माइनस नहीं हुई है, अगर माइनस नहीं हुई है, याद रखना। तो माइनस कौन सी चीजें हो रही हैं, जो प्लस हो गई या जो माइनस करनी ही है, प्लस हुई ना हो हमें क्या मतलब। तो लॉस जो लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड है, जो अभी तक आ रहे हैं, और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, दोनों में से एक चीज मिलेगी, विच एवर इज लेस। हाँ, तो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड सर 5 लाख का, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 3 लाख का, सर माइनस कितना होगा, 3 लाख होगा, 8 लाख नहीं होगा। और सर अगर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 0 है या लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 0 है, तो लेस 0 होता है, माइनस नहीं होगा। और लिखा है ये भी बुक्स के हिसाब से, नॉट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस माइनस होगा, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। लो जी बच्चों, डेप्रिसिएशन माइनस होगा बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, यानी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बेटा। डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला माइनस होगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन, वहां टोटल डेप्रिसिएशन ऐड किया, अब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कौन से वाला, हाँ कौन से वाला बच्चों, याद रखिएगा कौन से वाला, जो डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट का है वो माइनस कर, रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, और ये माइनस करना है, इसको ऐसे बोल दो, माइनस करना है ऐसे बोल दो, आई थिंक दैट विल बी द बेटर लैंग्वेज, डोंट वरी, एक बार मैं दोबारा से रन कर दूंगा इसको, एक बार तो समझो, एक बार तो इन चीजों को समझो, मैं दोबारा रन कर दूंगा। नेक्स्ट, amount withdrawn from revaluation reserve and credited to P&L to the extent it does not exceed amount of depreciation, याद करिएगा, अगर revaluations का जो रिजर्व का पैसा है वो हमने प्लस करना होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस करना होता है, हमने वहां पर किया था, अगर प्लस नहीं हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, अमाउंट विड्रॉन फॉर रीवैल्यूएशन टू द एक्सटेंट डज नॉट एक्सीड, ये अमाउंट माइनस होगा, उतना ही आपको प्लस करना है जितना रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन है। यस, तो एक्सेस अगर आपने ऐड कर दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। सो अगर आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा निकालकर पीएल में क्रेडिट कर रखा है, एंड लिखा है ना अमाउंट विड्रॉन फॉर रीवैल्यूएशन एंड क्रेडिटेड टू द पीएनएल, हमने कहा ना प्लस होना चाहिए, अभी बोला बेटा, देखो रीवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट प्लस होना चाहिए, हमने करा भी प्लस। छोटी छोटी सी चीजें कंफ्यूजिंग है, एक बार दोबारा रीरन कर देंगे, ऐड होना चाहिए। लेकिन अगर वो रीवैल्यूएशन के डेप्रिसिएशन से ज्यादा है तो एक्सेस वाला अमाउंट माइनस हो जाए। डेफर्ड टैक्स अगर प्लस हुआ है माइनस होगा। प्रॉफिट्स ऑफ 6 इंडस्ट्रियल कंपनीज प्लस हुई है तो माइनस होगा। अच्छा ये लो जी, इनकम ऑफ शेयर ऑफ एओपी बीओआई, अब वो इनकम मिल रही है एओपी बीओआई से मेंबर को,
अगर वो टैक्सेबल नहीं है, वो प्लस क्यों कर रखी है, माइनस कर दो, आ जाओ। अब ये वाली बात वही स्पेशल पर्पस वाली व्हीकल, रुक जाओ यहां पर, अभी ये हम कर चुके हैं, एक्चुअल लॉस कर चुके हैं। रॉयल्टी, हाँ जी, पेटेंट वाली 10% वाली अगर प्लस हो गई है बेटा, माइनस कर दीजिएगा। और ये 12th पॉइंट में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड दोनों माइनस होंगे इन कंपनीज में। इंसॉल्वेंट कंपनीज हो गई हैं या जिसकी ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, सस्पेंड कर दिया, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, वहां पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड दोनों। तो आप दोबारा से इस पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। आपके शेयर स्पेशल पर्पस व्हीकल के 1 करोड़ के थे, यूनिट्स मिल गए 1,30,00,000 के, नोशनल गेन है, प्लस कर रखा है, माइनस कर दो नोशनल गेन। अच्छा, वो 1,30,00,000 के जो यूनिट्स मिले 1,60,00,000 के हो गए, वो भी नोशनल गेन है। जब हमारे कम हो रहे थे तो हम प्लस कर रहे थे, प्लस हो रहा तो माइनस। या जो आपको गेन हुआ है यूनिट्स को बेचने पे, जितना भी आया हो, एक बार तो आपने अगर प्लस कर रखा है, माइनस कर दो। अब हमारा एक्चुअल गेन प्लस करेंगे, यस। तो एक बार ये ट्रांजैक्शन सारी पीएनएल से प्लस कर रखे हटाओ, और जो प्लस होगा ये आ जाइए बात, जो प्लस होगा बेटा एक्चुअल गेन प्लस होगा, एक्चुअल गेन प्लस होगा। और एक्चुअल गेन को कॉस्ट ऑफ शेयर्स देखकर, तो कॉस्ट ऑफ शेयर 1 करोड़ के थे, यूनिट्स बिके 1,30,00,000 के, तो आपको 30 लाख का गेन हुआ है, वो प्लस होगा। तो अगर मैं अब दोबारा से एक बार रिकैप करवा दूं और ये टॉपिक खत्म। देखो, सबसे पहली चीज, अगर रिजर्व में डेबिट हुआ है, कुछ डेबिट हुआ है, प्लस कर दो। 10, 11, 12 की इनकम डेबिट हुई है, प्लस कर दो। डिविडेंड पे किया है, माइनस हुआ है, प्लस कर दो। सारा डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, प्लस कर दो। रीवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट उस साल प्लस करना जिस साल ऐसे रिटायर हो जाए या डिस्पोज हो जाए। डेफर्ड टैक्स माइनस हुआ है, प्लस कर दो। इनकम टैक्स पेड पेएबल माइनस हुआ है, प्लस कर दो। शेयर ऑफ इनकम ऑफ एओपी बीओआई, जिस पे टैक्स नहीं देना मेंबर को, उसकी इनकम इंक्लूड नहीं हो रही, तो अगर आपने उसका एक्सपेंडिचर डेबिट किया है तो प्लस कर दो। नोशनल लॉसेस, जब शेयर्स और यूनिट्स की अदला बदली हुई, सब ऐड कर दो अगर माइनस हुआ है। और कोई भी आपकी यूनिट्स बेचने पे आपने लॉस दिखाया है, जितना भी दिखाया है, माइनस है तो प्लस कर दो। हम एक्चुअल लॉस माइनस करें, हम एक्चुअल लॉस जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स को लेकर इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, रॉयल्टी इनकम का खर्चा है, माइनस कर रहा है, प्लस कर दो। डिविन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस हुआ है, कोई प्रोविजन बनाया है, प्लस कर दो। अनअसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन बनाया है, माइनस कर रखा है, प्लस कर दो। रीवैल्यूएशन का अमाउंट के मैं बता चुका हूं, हाँ जी, ये 16 पॉइंट तो आगे लिंक्ड है। अब अगर आपने रिजर्व से पैसा क्रेडिट कर रखा है तो माइनस कर दो। 10, 11, 12 की इनकम क्रेडिट कर रखी है, माइनस कर दो। लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेबिट दोनों में से लोअर अमाउंट माइनस होना है, नहीं किया तो करो। डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन माइनस करना है। अच्छा, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट, यस, कितना ही हमें क्रेडिट करना है जितना रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन है, उससे ज्यादा आ रहा है तो माइनस कर दो। डेफर्ड टैक्स प्लस हुआ है तो माइनस कर दो। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के प्रॉफिट्स लिमिटेड वे में निकाले गए प्लस हैं तो माइनस कर दो। शेयर ऑफ इनकम ऑफ एओपीबीवाई प्लस है, जिस पे टैक्स नहीं लगता, आप करेंगे, माइनस कर दो। भैया नोशनल गेन हुआ है या कोई एक्चुअल गेन भी हुआ है, एक बार तो प्लस कर दो। हम हाँ, एक बार तो माइनस कर दो। गेन्स, सॉरी गेन्स, एक्चुअल गेन हुआ है, सॉरी गाइस, माइनस कर दो। हम एक्चुअल गेन माइनस करेंगे शेयर्स की कॉस्ट लेकर, देखो एक्चुअल गेन प्लस करें, तो नोशनल आइटम हटा दीजिए, खाली ये मान लीजिएगा एक्चुअल गेन प्लस होगा कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेकर। ये कर लो ना, जितना भी आपका एसपीवी और ट्रस्ट और यूनिट्स की ट्रांजैक्शन सारी हटा दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस हो प्लस कर दो। उसके बाद ये देखना क्या आपको ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स पे गेन हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स को लेकर जो गेन हुआ है वो प्लस होगा, और लॉस हुआ है
यूनिट्स को बेचने पर कॉस्ट ऑफ शेयर्स इंक्लूड करके, तो वो माइनस। सिंपल है, देखो कितना सिंपल है यार। अच्छा, उसके बाद रॉयल्टी इनकम आपकी है प्लस, तो माइनस कर दो। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट, इसमें दोनों मिलेंगे इन केसेस के। हो गया जी। अब आपका क्या काम रह गया, मैट का क्रेडिट। यस, मैट का क्रेडिट कब आएगा, जब बच्चे आपका डीम्ड टैक्स ज्यादा आएगा एक्चुअल टैक्स से। डीम्ड टैक्स एक्चुअल टैक्स से ज्यादा आएगा तो मैट क्रेडिट अराइज होगा। यस, और अगर डीम टैक्स आया तुम्हारा 1 करोड़ और एक्चुअल टैक्स 70 लाख, तुम्हें तो 1 करोड़ देना पड़ेगा। जो इसका बैलेंस है 30 लाख, उसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा, 15 सब्सिक्वेंट साल। और अगले साल जब सेट ऑफ होगा, जब आपका एक्चुअल टैक्स या नॉर्मल टैक्स कह लीजिए, डीम टैक्स से या मैट कह लीजिए, डीम टैक्स को मैं मैट कहता हूं, उससे ज्यादा होगा और जितना दोनों का डिफरेंस होगा, तो अगले साल, ये आपका साल कौन सा है 2021, कितना क्रेडिट है 30 लाख। अगले साल एक्चुअल टैक्स 50 लाख और डीम टैक्स मेरे बच्चे 40 लाख, तो आपको देना तो 50 लाख है, लेकिन इसमें से मैट क्रेडिट मिल जाएगा कितना, दोनों का जो जितना एक्चुअल टैक्स ज्यादा है डीम टैक्स से 10 लाख, तो आपको देना कितना पड़ा 40 लाख, और 30 लाख का अमाउंट 10 लाख क्रेडिट में मिल गया, 20 लाख कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 14 साल तक। ये काम है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि आप बुक प्रॉफिट सही तरीके से निकाले हैं या नहीं, और इसके लिए एक अमेंडमेंट आ गई है, क्योंकि अब सारी डेट्स, पहले ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आपकी 30 सितंबर होती थी, ऑडिट के लिए भी, कंपनी के लिए भी, और जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिडक्शंस लेने के लिए रिपोर्ट लेनी होती थी, अब वो 30/9 की डेट कर दी गई है 31 अक्टूबर। तो रिटर्न फाइलिंग की तो डेट 31 अक्टूबर कर दी गई है, लेकिन जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट्स लेनी है या डिडक्शंस लेने के लिए रिपोर्ट लेनी है, उसका टाइम 30/9 ही है। तो रिटर्न फाइलिंग की डेट मेरे बच्चों 31 अक्टूबर कर दी गई है असेसमेंट ईयर की, लेकिन ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट या रिपोर्ट्स लेने का टाइम है ना, ये 30/9 तक ही रखा गया है। तो वही लिखा है ना, द रिपोर्ट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट अंडर 44AB, और 44AB में लिखा है 1 मंथ बिफोर DDR, 1 मंथ बिफोर 31 अक्टूबर, और 1 मंथ बिफोर 31 अक्टूबर 30/9/2021 ले लेते हैं, अगर 21-22 की बात करें। ये बेटा 115BA कंपनीज हैं, मैंने बोला ना मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज, इनका थोड़ा सा मैं 2-2 मिनट को ओवरव्यू दे दूं। BA मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अच्छा बेटा, BAA ये वाली कुछ कंपनी जिसपे हमने बोला ना टैक्स 22% कर दिया गया, और ये BAB वाली कंपनीज जिसका टैक्स रेट 15% है, जिसका टैक्स रेट 15% है। मैं क्या करता हूं, अब आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूं इनका, सो दैट आप जब पढ़ें अपने आप तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वैसे ये तो लास्ट ईयर आ चुकी है, वैसे ये लास्ट ईयर आ चुकी है अमेंडमेंट्स, तो ये हम लास्ट ईयर ही डिस्कस कर चुके हैं। बस ये क्या लिखा है, कंपनी 1/3/2016 के बाद हो, जिसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का हो, या इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिसर्च करती हो, रिलेटेड कोई रिसर्च करती हो, या डिस्ट्रीब्यूशन जो ये आइटम बनाती है, ये कुछ कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, तो ये कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। 10AA स्पेशल देखो बेटा 115 BAC में आते हो ना, जो इंडिविजुअल HUF के लिए है, ये उसी तरीके की मिलती जुलती कुछ कुर्बानियां हैं, लेकिन इनकी कुर्बानियां ये ही हैं। 115 BAC में तो बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। एक SEZ यूनिट की जो एग्जेम्पशन मिलती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेंगे बेटा, ये क्रॉस्ड है, ये सारे बेनिफिट्स बंद कर दिए। 32AC, वैसे 32AC और 32AD अब लागू नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस थे, वो 31 BC तक थे, तो ये तो अब फर्क पड़ता नहीं। ये 33AB बेटा टी डेवलपमेंट अकाउंट, 33AB है साइड रिस्टोरेशन अकाउंट किया, साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशंस 35 2AA 2AB, ये सब आपकी, इनफैक्ट 35 2AB में 150% डिडक्शन मिलती थी, अब 100 है, तो ये नहीं मिलेगी आपको। 35 नॉर्मल 35 सबसेक्शन 1 में मिलेगी। 35AC ये अब डिलीटेड है, ये वैसे ही डिलीट हो गई। 35AD ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड बिजनेस का, वो कोल्ड चेन और वो
आपका होटल और हॉस्पिटल का। 35CCC ये आपका मेरे प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। CCD आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 80C2 80U नहीं मिलेगी। 80JJAA ये जो न्यू वर्कर्स को रखना है वो मिल जाएगी। तो ये मोटा मोटा ये कंपनी, क्या ये सेक्शन में आ गए? आ तो गया। अनलेस ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फर्स्ट रिटर्न जब फाइल करनी है, और एक बार आपने ये ऑप्शन ले ली है, जिंदगी भर आपको इस ऑप्शन में रहना पड़ेगा। शायद 1 BAC में भी ये बात थी। लेकिन अगर बा में आ गए, ये सेक्शन अभी आए थे 2019 में आए थे, आई सपोज 2020 में तो नहीं आए, 2019 में आए थे, निर्मला सीतारमन जी ने ना ऑर्डिनेंस के थ्रू। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस के थ्रू ये सेक्शंस आए थे 15BAA। तो यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक कंपनी 22, अगर ये ऑप्शन ले लेती है BA वाली कंपनी BAA की तो ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अगेन देखो यहाँ पर भी कुछ छूट है। अब यहाँ पर एक 80JJAA तो ले सकते हो, और ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की डिडक्शन ले सकते हो। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड ये डिडक्शन ले सकते हो, तो नहीं आई है ना, डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर, एम्प्लॉय तो 80C2 80U नहीं मिलता, 2 मिल जाएंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर, तो ये खाली पहले एक डिडक्शन अलाउड थी, अब आपको 2 डिडक्शन अलाउ कर दी गई हैं, 80 MB मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये ऑप्शन भी आपको बतानी पड़ेगी, और एक बार अप्लाई कर दी जिंदगी भर लगी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बाब में थे, BAB में थे, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, और BAB की आपने कंडीशंस तोड़ दी हैं, वायलेट कर दिया है ना, धज्जियां उड़ा दी हैं, तो फिर आप इस सेक्शन में आ सकते हो। तो BA वाला, BA वाला BAA में आ सकता है, बिल्कुल सही। और बेटा BAB वाला कंडीशन तोड़ के BAA में आ सकता है। और एक बार ये ऑप्शन ले लिया, यहां पर आ गए, अब यहां से बच के कहां जाओगे, यहां से बच के नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो जिंदगी भर फॉलो करना। तो BA से BAA में आ सकते हो, BAB से भी BAA में आ सकते हो। और ये बाप क्या बेटा, ये कुछ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो, यस, और यहाँ पर क्या लिखा है, 15% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर टोटल इनकम उनकी, जिसमें कुछ ऐसी इनकम है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जिसपे कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं है, स्पेशल रेट को बिलोंग नहीं करती, स्पेशल रेट को बिलोंग नहीं करती, 111A, तो उस पर 22% लगेगा विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। हाँ, ये भी बड़ा हार्श है। क्या उत्पादन कई कंपनी हो तुम, यस, 15% टैक्स लगेगा। लेकिन नॉन उत्पादन से तुम कमाई कमाते हो, जिसपे कोई स्पेशल रेट नहीं है, उस पर 22 लगेगा। और अगर इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन डीम्ड एज सो बिलो, 30% टैक्स लगेगा। किसी ऐसे पर्सन का डीलिंग हो रही है जो BAB में कवर्ड नहीं है, तो वो अपने प्रॉफिट्स को यहां शिफ्ट कर देता है। ऐसा होता है ना दोस्तों, कि देखो आपका घर बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सामान को आपके घर रखवा देता हूँ, कि मुझे पता आपका घर बड़ा है, आपकी पुलिस के साथ जान पहचान भी है, तो कोई पकड़ेगा नहीं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भाई इस तरीके से काम करो, आपका टैक्स तो 15% का है, मैं आपके साथ डील करता हूँ, मैं आपको ऐसा करता हूँ, हाई रेट पे, लो रेट पे सेल करता हूँ। लो रेट पे सेल करने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं तो तुम हो ना 15% पे, तो मैं लो रेट पे सेल करता हूँ, या मैं हाई रेट पे तुमसे परचेज करता हूँ, तुम्हारी सेल प्राइस बढ़ा देता हूँ, तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 15% टैक्स है। तो ऐसी इनकम अगर पकड़ी जाती है ना, उस इनकम पे 30% टैक्स होता है, कि गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स से जो ज्यादा कमा रहे हैं। नॉर्मली यार परचेज प्राइस 5 रुपए का था, तुम उसको है ना डिफरेंट रेट पे खरीद रहे हो, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग नहीं है। समझो, ये डिटेल चीजें हैं, मोटा मोटा आप समझ लो। देखो CS एग्जीक्यूटिव में MCQ पेपर होता है, वहां पर इतनी डीप कैलकुलेशन आएगी नहीं। और रही बात CMA इंटर को, उनको समझने के लिए थोड़ी सी बात है कि भाई अगर अफेयर्स इस तरीके से चलाए जा रहे हैं कि एक एंटिटी अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं इस एंटिटी को शिफ्ट कर रही है, तो वो देखा जाएगा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, उस पर 30%। और अगर STCG आता है कैपिटल एसेट पर, जिसपे डेप्रिसिएशन अलाउएबल, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल,
नॉन डेप्रिशिएबल जो ब्लॉक में नहीं थी, ऐसी एसटीसीजी आता है उसमें 22% है, बाकी अपने आप की स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसमें भी वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1/10/2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में सेटअप हो, और ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ना हो, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ना हो, पुरानी प्लांट मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेजों द्वारा या विदेश में इस्तेमाल हुई, इंडिया में इंपोर्ट हुई, जिस पे आज तक उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लिया गया है, वो इस्तेमाल कर सकते। और अगर चलो हिंदुस्तानी भी ओल्ड इस्तेमाल करनी है तो मैक्सिमम 20% टोटल प्लांट मशीनरी का हो सकता है। और कोई बिल्डिंग ऐसी इस्तेमाल मत करना जिस पे आईडी ऑलरेडी ले चुके हो, कंपनी का ये काम नहीं हो सकता। कंपनी शेल नो बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, तो आप बीएबी में नहीं आ सकते। बिजली के उत्पादन में ये वर्ड डाल दिया गया अमेंडमेंट करके, बिजली का उत्पादन करना बीएबी में आ सकते, ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं जो नहीं मिलेंगी। एटीएम यहाँ पर भी आप ले सकते हो, JJAA भी ले सकते हो, एटीएम भी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, वो तो अलाउड है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार इस सेक्शन में आ गए तो विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वहां चले गए कंडीशन तोड़ के, वॉलंटरी तो नहीं जा सकते, कंडीशन तोड़नी पड़ेगी बीएबी की, तो BAA में आ सकते हो। और एक बार इस सेक्शन में आ गए जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हो गया जी बच्चों, चलो जी लड्डू पेड़े बांटो। आपका टैक्सेशन ऑफ कंपनी का पॉइंट भी हमने रिवाइज किया, और जो जो अमेंडमेंट आई वो कवर किया। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 16 असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटी शुरू करें। यस, ये छोटा सा चैप्टर 4 पेज का, बेटा बेटा बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। देखो 1 2 पहले बता दूं मैं, 3 और 4, बस हो गया जी। तो ये शायद 10 मिनट के अंदर हम कवर कर लें। आइए दोस्तों, दिन का टाइम है, आई नो, खाने के बाद तो वैसे भी यू फील लाइक हैविंग अ नैप। चलिए आइए दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटी चैप्टर नंबर 16। एचयूएफ से जो भी इनकम आपको मिलती है, यस, शेयर ऑफ हिस्सा मिलता है पार्टीशन पे या कैसे भी मिले, वो तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मेंबर को एचयूएफ की इनकम से कुछ अमाउंट मिले, देखो बेटा मेरी एचयूएफ है, सचिन गुप्ता एचयूएफ, उस एचयूएफ की इनकम पे टैक्स कौन देगा? उस इनकम पे टैक्स देगा एचयूएफ। और फिर वो टैक्स पेड अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? मेंबर्स में। तो मेंबर्स के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा सेक्शन बच्चों? 10(2). 10(2). हाँ, लेकिन अगर मेंबर कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एचयूएफ को गिफ्ट करते हैं, नवीन 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 तू कहाँ आ गया नवीन? you know this is primarily for, I'm focusing on CS executive, yes, and I'm focusing primarily on CMA inter, yes. There are though some topics which are milte julte to CA inter, but primarily this is for CMA inter, and you know ये ऑनलाइन भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम कहां से कहां घूम लेते हैं। तो चलो बाय बेटा, बाय, टेक केयर। चलिए, सो एचयूएफ सम रिसीव बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ आउट ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली शैल बी एग्जेम्प्ट, बाकी क्लबिंग प्रोविजन कर लिया। अच्छा, पार्टनरशिप के बारे में ना 40B सेक्शन ये मैंने डिस्कस किया था पीजीबीपी में। पीजीबीपी में 40B मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं उसके और पॉइंट्स कवर यहां पर करूंगा, ठीक है। तो बेटा अगर आपको 40B एक दोबारा मैं बोल दूं, वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन ब्रशिंग अप फायदेमंद है। जिन्होंने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा है माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पहले लेक्चर्स देखिए, फिर उसके बाद आप ये देखिए, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो वो होता क्या है, जब हम ऑर्डिनरी फुल कोर्स करते हैं उसमें बहुत चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, टाइम बहुत लगता है। इसमें आप देखिएगा 9 सेशंस इंटू 2 अप्रॉक्स 18 आवर्स के अंदर अंदर हमने सारा चीज रिवाइज करी। तो एक दिन अगर सुबह से बैठ गए 18 घंटे लगा के, तो मतलब उसके बाद जीने लायक बचोगे तो नहीं लेकिन चलो बच्चों, तो क्या लिखा है जी, पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, पार्टनर के हाथ में 10(2) है, मैंने बताया था बिल्कुल। इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन
पार्टनर को जो मिलता है फर्म से वो बिजनेस इनकम है, वो पीजीबीपी में आता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था अगर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को मिलती है जिसकी डिडक्शन नहीं मिली, ये तो शायद हम कर चुके थे, फर्म के हाथ में माइनस हुआ तो पार्टनर के हाथ में प्लस होगा, फर्म के हाथ में प्लस हुआ तो पार्टनर के हाथ में माइनस होगा। तो ये सारे फंडेज ऑलरेडी मैंने पीजीबीपी चैप्टर में करवा दिए। लेकिन यहाँ पर सर फिर क्यों बता रहे हो? अरे यहाँ पर छोटी छोटी बातें, न्यूएंसेस मैं बता रहा हूँ। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर शुड बी ऑथराइज, अगर वो नॉट ऑथराइज्ड है बाय द पार्टनरशिप डीड तो हम उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। तो रेम्यूनरेशन हो या इंटरेस्ट हो, पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज नहीं है, मेंशन नहीं है, क्वांटिफिकेशन नहीं है, तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। और प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, प्रायर पीरियड का नहीं होगा, ये भी शायद मैंने बताया था, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, ये भी बुक प्रॉफिट्स की बात भी करी थी। ये 2-3 पॉइंट्स बता दूं। अ फर्म शैल बी असेस्ड एज द फर्म, फर्म को फर्म माना जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड है आपकी, यस, और इंडिविजुअल शेयर ऑफ द पार्टनर उस डीड में मेंशन्ड हो, और आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड पहले रिटर्न के साथ फाइल करनी। अब तो आपको ऑब्वियसली सारे हमारे रिटर्न्स ऑनलाइन ही होगी 99%, तो उस केस में ये आपको स्कैन करके जो डीड है वो भेजनी पड़ेगी इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज रिवाइज डीड आफ्टर चेंज, बार बार नहीं, एक बार। दूसरी बात, if the firm fails to fulfill aforesaid condition then deduction shall not be allowed to the firm of interest, salary, bonus, commission or remuneration of the partner। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको 184 की कंडीशन पूरी करनी है, लाज रखनी है, अगर 184 की लाज नहीं रखी तो 185 कहता है कि भाई मैं तुम्हारी जो 40B की डिडक्शन ले रहे थे ना 12% ब्याज की या वर्किंग पार्टनर की सैलरी की, वो छीन लेंगे। और ऑब्वियसली फिर वो छीन लेंगे तो फर्म के हाथ में प्लस हो गई एक तरीके से, तो पार्टनर्स के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगी, फिर पार्टनर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम पार्टनर के हाथ में 12% तक का ब्याज टैक्सेबल करते हैं और वर्किंग पार्टनर के हाथ में रेम्यूनरेशन जितनी फर्म को डेबिट हुई प्लस करते हैं। जब फर्म को हम ₹1 का खर्चा नहीं देंगे क्योंकि 184 सेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो फर्म के हाथ में प्लस हो गई, फर्म के हाथ में, तो पार्टनर के हाथ में लाजमी है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? Every person who was during the previous year partner of the firm and his legal representative shall be jointly and severally liable। अरे बेटा प्रीवियस ईयर 18-19 में X प्लस Y प्लस Z 3 पार्टनर थे, अब ये पार्टनर रिटायर हो गया या मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लायबल रहेगा 18-19 की टैक्स लायबिलिटी की। So every person who was during the previous year partner of the firm and his legal representative shall be jointly and severally liable along with the firm for payment of tax penalty for such previous year। लो जी, हो गया जी, छोटी छोटी बातें थी। क्या था ये एओपी बीओआई का डिस्टिंक्शन तो आपको पता ही है, पढ़िएगा अपने आप। मैं यहाँ पर एओपी बीओआई का डिस्टिंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एओपी बीओआई का टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जरा। As per section 40BA, in computing the income of AOP BOI under page A, बताया था 40BA भी, तुम्हें याद ना हो तुम भूल जाओ, नहीं क्या था वो डायलॉग, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना? तो मैं तो भूलता नहीं हूं, तुम भूल जाओ तो मैं ये होने नहीं दूंगा। तो 40BA के अंदर अगर एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस एक्सेट्रा देती है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, नो डिडक्शन। बड़ा हार्श है यहाँ पर गवर्नमेंट, कम से कम फर्म एओपी फर्म के अंदर वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट तक दे सकते, सैलरी 12% तक का ब्याज दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एओपी बीओआई अगर ₹1 का भी बोनस, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट देता है तो डिडक्शन नहीं मिलती। अच्छा, अब दूसरी बात, ये चार्ट को ना थोड़ा सा मैं सरल कर दूं, तो मैं सरल करने के लिए इस टेबल को टैक्स रेट्स ऑफ एओपी बीओआई पे आ रहा हूं। लिखिए जरा, टैक्स रेट्स ऑफ एओपी बीओआई। अच्छा बच्चों, टैक्स रेट्स ऑफ एओपी बीओआई आपने पढ़े हुए हैं,
सर वो तो स्लैब रेट होते हैं 2.5 लाख के, यहां पर ही हम थोड़ा सा तब्दीली कर रहे हैं। आइए जरा इसी में मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अगर शेयर ऑफ हाँ सुनिए मेरी बात, अगर शेयर ऑफ मेंबर्स इज yes share of members is determinate is determinate share of members is non determinate। इतने साल हो गए भूल गए शेयर क्या है मेंबर्स का। शेयर ऑफ मेंबर इज नॉट डिटर्मिनेट और अनडिटर्मिनेट, हमें नहीं पता किस मेंबर का क्या शेयर। अगर शेयर ऑफ द मेंबर्स इज डिटर्मिनेट, सुनिए मेरी बात, नो मेंबर is having total income exceeding exemption limit। किसी भी मेंबर की मेरे बच्चों इनकम टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है। अच्छा, शेयर फिक्स्ड भी है और 2.5-3 जो भी लिमिट्स होती है एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, उस केस में टोटल इनकम, यस माय डियर फ्रेंड, उस केस में टोटल इनकम ऑफ एओपी बीओआई chargeable at slab rate, total income of AOP BOI chargeable at slab rate। लो जी, तो मान लीजिए, लो जी सुन लो, AOP BOI के मेंबर हैं ए और बी, दो मेंबर है, चलो ए और बी, और ए और बी की जो टोटल इनकम है 2.5 से कम है, तो उस केस में एओपी बीओआई की इनकम स्लैब रेट पे आई। चलो नेक्स्ट। अच्छा यहां पर हम लिखते हैं बच्चों एनी मेंबर हैज टोटल इनकम या एनी मेंबर is चार्जेबल एट एमएमआर। कोई भी मेंबर एमएमआर पे चार्जेबल है, एंड इनफैक्ट इज चार्जेबल एट रेट ग्रेटर देन एमएमआर। बेटा एमएमआर क्या होता है मैं बता रहा हूं, बड़ा संभल के चलना, छोटा सा टिपिकल पॉइंट है, चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं उसके बाद। एनी मेंबर इज चार्जेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर। बेटा ये फर्स्ट रिवीजन सेशन में एमएमआर बताया था, इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट रिवीजन सेशन में एमएमआर बताया था, और एमएमआर मैं बार बार 30 इंटू 1.37 इंटू 1.04 बेटा बनता 42.744 से ज्यादा है। वैसे प्रैक्टिकली अब ऐसा कोई बंदा मिलना मुश्किल है जिसका टैक्स रेट 42 पॉइंट ग्रेटर देन 42.744% है। चलो एज्यूम कर लो, एज्यूम मैं ए की जगह इंस्टेड ऑफ ए, सुनो मेरी बात, इंस्टेड ऑफ ए इट इज मैसेसर्स ए बी सी, एंड उसका टैक्स रेट अगर 42.74 से ज्यादा है, मैसेसर्स ए बी सी हैज टैक्स रेट ग्रेटर देन 42.744%। मान लीजिए ए की जगह ना, ए था ना मेंबर, तो यहां पर एंटायर इनकम, यस एंटायर इनकम ऑफ या इनकम ऑफ एओपी बीओवाई, इनकम ऑफ एओपी बीओवाई, हाँ जी, एट एमएमआर। हाँ, इनकम ऑफ एओपी बीओवाई एट एमएमआर टू द एक्सटेंट, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मेन क्लास में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन अभी रिवीजन है तो थोड़ा सा मैं ऑन द पेरिफेरी रहूंगा। इनकम ऑफ एओपी बीओआई एट एमएमआर टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स शेयर, या इनकम ऑफ एओपी बीओआई एट इनकम ऑफ एओपी बीआई एट हायर रेट, एट हायर रेट, such higher rate to the extent of its share
and balance, yes my dear friends, at MMR, बैलेंस एट MMR। ये नोट कर लेना जरा एक बार, दोबारा से बोलता हूं, नो मेंबर इज हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट। सर हम कर क्या रहे हैं पहले ये बताओ। अरे बच्चे हम EOP BOI का कॉम्प्लेक्स टैक्स रेट कर रहे हैं। फर्म का टैक्स रेट तो 30% होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे फर्म कह लो, पार्टनरशिप कह लो, LLP कह लो। अगर मेंबर का शेयर डिटर्मिनेट है, नोएबल है, वी नो द शेयर्स, या इतना पुराना एग्रीमेंट है, वहां पर शेयर्स पता ही नहीं कितने हैं। अब नो मेंबर इज हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट, किसी भी मेंबर की एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम नहीं है, तो हम टोटल इनकम ऑफ EOP BOI स्लैब रेट पे टैक्सेबल कर। ये वाला केस था जो हम पढ़ते थे। हाँ जी, सुनो मेरी बात, आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं है। आज मैंने बोला ना, हमारा कल इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, कल के टॉपिक्स तुम्हारे आधे पौने घंटे के, तो आज का एक्स्ट्रा भी हम टाइम कल लगा सकते हैं। एनी मेंबर इज चार्जेबल एट अ टैक्स रेट हाइयर देन MMR, जैसे 42.744 से भी ज्यादा है किसी मेंबर का टैक्स रेट, तो हमने एज्यूम कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, ए की जगह कोई ABC है, उसका टैक्स रेट 42.74 से ज्यादा है, मान लीजिए 50% है, कोई इनकम टैक्स के प्रोविजन है मान लो, तो इनकम ऑफ EOP, इनकम ऑफ EOP and BOI at such higher rate, yes to the extent of his share, जिसका उतना शेयर है ना, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे 1/3 है, 1/2 है, या जो भी उसको मिल रहा है उसके हिसाब से वो हम टैक्सेबल करेंगे हाइयर रेट पर, बैलेंस इनकम एट MM। चलो ठीक है। अच्छा अब आ जाओ दूसरा केस, शेयर ऑफ मेंबर इज नॉट डिटर्मिनेबल, शेयर ऑफ मेंबर इज नॉट डिटर्मिनेबल, शेयर ऑफ मेंबर इज नॉट डिटर्मिनेबल। अब इस केस में दो केस बना लो, नो मेंबर चार्जेबल एट हाइयर देन MMR, नो मेंबर चार्जेबल एट हाइयर देन MMR, किसी भी मेंबर की इनकम MMR से ऊपर नहीं है, तो इस केस में, इस केस में हमारी EOP BOI की इनकम MMR पे आ जाएगी, EOP BOI एट MMR पे टैक्सेबल हो जाए, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। लेकिन अगर मेरे बच्चों एक मेंबर की भी इनकम MMR से ऊपर है, हाइयर देन MMR रेट है, एक मेंबर का भी टैक्स रेट, तो सारी इनकम हाइयर रेट पे टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये मैं यहाँ पर 1 बना लूं बेटा, और यहाँ पर ही जगह थोड़ा सा अभाव है, तो या तो मैं यहाँ पर 1 बनाऊं और यहाँ पर 2 बनाऊं, ठीक है, देखो जरा, और फिर मैं 2 इधर बना देता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन फिर मैं बोलूंगा, ध्यान देना, थ्योरेटिकली आ सकता है। ऑफ एनी मेंबर चार्जेबल, यस चार्जेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन MMR, ऑल इनकम ऑफ EOP BOI चार्जेबल एट MMR। बस नोट कर लो जरा, बड़ा सिंपल सी बात, लिख लो जी। तो मैं अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वचनबद्ध हूं। शेयर ऑफ मेंबर डिटर्मिनेबल है, डिटर्मिनेट है, नो मेंबर इज हैविंग TI ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट, टोटल इनकम ऑफ EOP BOI चार्जेबल एट स्लैब रेट, एनी मेंबर इज चार्जेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन MMR, एनी मेंबर इज चार्जेबल, तो भैया उसका शेयर तक, इनकम ऑफ EOP BOI एट हाइयर रेट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर एंड बैलेंस एट MMR, क्योंकि शेयर फिक्स्ड है तो उसके शेयर तक हम हाइयर रेट, बाकी MMR। अच्छा अगर शेयर ऑफ द मेंबर इज नॉट डिटर्मिनेट माय डियर फ्रेंड्स, नो मेंबर चार्जेबल एट हाइयर दैट MMR, तो EOP BOI MMR पे आएगी, यहां तो MMR आना ही आना है। और दूसरा केस माय डियर फ्रेंड्स, अगर एनी मेंबर चार्जेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन MMR, ऑल इनकम ऑफ EOP BOI MMR, ये मोटा मोटा 4 केस हो गए। इसी केस में याद रखना, ये लिख लो जी, इसी केस में लिखना जरा, जब EOP BOI स्लैब रेट पे आती है, लिखना यहां पर स्टार लगाना, इन दिस केस ओनली, इन दिस केस ओनली
हाँ, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, एक्सेट्रा received by member is taxable. Received by member is taxable in his hands. इसी केस में शेयर जो होता है वो टैक्सेबल होता है और हाथ में जुड़ता है। इसी केस में शेयर जो होता है वो हाथ में जुड़ता है एंड रिबेट is also allowed, yes, at average rate of tax, ARR, average rate of tax। तो इसी केस के अंदर हम मेंबर्स का शेयर, इसी केस में हम मेंबर्स का शेयर टैक्सेबल करते हैं उसके हाथ में, क्योंकि स्लैब रेट एग्जेम्पशन रेट लग रहा है तो हम शेयर टैक्सेबल करते हैं और एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे डिबेट दे। चलो कॉपी कर। और आपको अगर इसके क्वेश्चंस करने हैं तो आप एक बार मेरी मेन क्लास जो हमने करी थी उसको रेफर करिए, या आपने कहीं से भी पढ़ा था तो उसको भी रेफर कर सकते। आइए वापस मैं उतर रहा हूं। अब मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा। आइए जरा देख लें, जरा ये टेबल पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। शेयर ऑफ मेंबर in AOP BOI is indeterminate unknown and any member is chargeable to tax at a rate higher than MMR। आ गई ना बात? इनकम ऑफ AOP is taxable at higher rate। आ गई ना बात? शेयर इनडिटर्मिनेट है और एक भी मेंबर की MMR से ऊपर है, सारी इनकम MMR। शेयर ऑफ द मेंबर इज डिटर्मिनेट एंड नोन, शेयर मेंबर का डिटर्मिनेट एंड नोन है और मेंबर इज चार्जेबल टू टैक्स एट रेट हाइयर देन MMR। एक मेंबर चार्जेबल है। Income of AOP BOI to the extent of such member share taxable at higher rate and balance income at MMR। यही किया बच्चों। देखो, none of the member of AOP BOI has other income exceeding exemption limit, share fixed है, total income shall be taxable at normal rates applicable to the individual। 2.5 लाख की exemption limit। और केस सी में ही, अरे मेरे बेटा, member share in the total income AOP BOI will be included in his total income and rebate will be allowed at the average rate of tax। यही बताया मैंने। अब द अच्छा, if income of AOP is not chargeable to tax, member share in the such income will be taxable in the hands of the member and no rebate will be allowed। अगर AOP BOI, हाँ, income of the AOP BOI is not chargeable to tax का मतलब है भैया अगर नॉर्मल रेट पे नहीं है तो मेंबर शेयर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, मेंबर शेयर विल बी टैक्सेबल इन हिज, हाँ, एओपी बीवाई इसी केस में जब चार्जेबल टू टैक्स नहीं है ना उस केस। चलिए अब आते हैं बेटा एएमटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट जो था वो कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए था, एएमटी किसके लिए? नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज। फर्क समझो, मैट किसके लिए? कॉर्पोरेट एसएससीज। एएमटी किसके लिए? नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज। सर इंडिविजुअल, यस, नीचे लिखा है इंडिविजुअल। चलो मैं लिखवाता हूं, HUF, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, सबके लिए नॉन कम। और सर यहां पर क्या कॉन्सेप्ट? वही आपका रेगुलर इनकम टैक्स, नॉर्मल इनकम टैक्स। नॉर्मल टैक्स कैसे आता है? एक्चुअल टोटल इनकम, एक्चुअल टैक्स रेट्स। ये आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को मैं डीम्ड टैक्स बोलता हूं, और एडजस्टेड टोटल इनकम, वहां बुक प्रॉफिट था, ये डीम्ड इनकम बोलता हूं एडजस्टेड टोटल इनकम को, और ये डीम्ड टैक्स रेट बोलता हूं, डीम्ड टैक्स रेट। लेकिन कुछ कंडीशन है बेटा, अगर आपको एएमटी में आना है तो आओगे तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर हो। यहां पर फर्म वर्ड नहीं है, यहां फर्म नहीं है, फर्म पर एएमटी लगता है, एएमटी इज एप्लीकेबल बट कंडीशन ऑफ 20 लाख इज नॉट एप्लीकेबल, बट कंडीशन ऑफ 20 lakhs नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, तो फर्म पर एएमटी लगता है लेकिन 20 लाख की कंडीशन है। 20 लाख है क्या? एडजस्टेड टोटल इनकम है। और एएमटी पता है कब लगता है? तीनों में से कोई भी सेक्शंस का बेनिफिट आप उठा रहे हो,
या तो आप प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन 80C टू 80U ले रहे हो, 80IA, IB, QQB, RRB, JJAA प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है, या 35AD की डिडक्शन ले रहे हो, या 10AA की ले रहे हो। तो दो कंडीशन याद रखिएगा कि अगर आप 35AD की डिडक्शन ले रहे हैं, 10AA की एग्जेम्पशन ले रहे हैं, या प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन ले रहे हैं, और आपकी यस एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको समझाने के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। भैया सुनिए, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होना चाहिए सबसे पहले, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, पहली बात। दूसरी बात, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी में आप तीनों में से एक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। हाँ, क्लेमिंग ऑल और एनी, क्या? सेक्शन 10AA, सेक्शन 35AD, या 80C टू 80U प्रॉफिट बेस्ड होती है, विच इज नॉट इन्वेस्टमेंट बेस्ड। 80IA, IB, JJA, JJB, JJAA, QQB वो प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है। सुनिए, प्लस एक और कंडीशन, सुनिए मेरी बात, अगर आप फर्म है एप्लीकेबल, बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप नॉन फर्म है, नॉन कंपनी तो है ही, नॉन फर्म है, तो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर भी होनी चाहिए। तो यहां पर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फर्म है मेरे बच्चे, तो एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लो, सबसे पहली कंडीशन नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होना चाहिए, क्लेमिंग ऑल और एनी, क्या? ये तो 10AA, 35AD, 80C टू 80 प्रॉफिट बेस्ड। अगर आप फर्म हैं तो ये कंडीशन आपके ऊपर नहीं है। अगर आप नॉन फर्म हैं तो ATL 20 लाख से ऊपर। अब ATL क्या है? एडजस्टेड टोटल इनकम, या ATI क्या है, समझा देता हूं बेटा आपके लिए, लिखना जरा, एक सेकंड मेरे बच्चों। ATI क्या है? इट इज योर एक्चुअल टोटल इनकम एड, हाँ ये ऐड कर दो तीनों एग्जेम्पशन अगर ले रहे हो, सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA ऐड कर दो, प्लस 35AD ले रहे हो, प्लस हाँ प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस ले रहे हो, वो ऐड कर दो। मान लो ले ही नहीं रहे हो, अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और इसमें से लेस करना डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32, जो आपको नॉर्मली मिलता, नॉर्मली अलाउड इफ assessee not covered अंडर सेक्शन 35AD। ये एडजस्टेड टोटल इनकम है बेटा, लिख लो, एक्चुअल टोटल इनकम प्लस 10AA प्लस 35AD प्लस प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस लेस डेप्रिसिएशन 32, जो नॉर्मली मिलता अगर आप 35AD में नहीं आते, अगर आप 35AD में नहीं आते। चलिए कॉपी कर लीजिए, आई एम गिविंग यू अ मिनट टू कॉपी। चलिए नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर माय डियर लवली फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा, उसके बाद ये नई बात आ गई, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी है कि आपने एडजस्टेड टोटल इनकम सही तरीके से निकाली है। एक महीना पहले 30 सितंबर 2021, बिल्कुल सही। और ऑल अदर प्रोविजन, सारे प्रोविजन नॉर्मली आप पे लगेंगे, टैक्स निकालते वक्त कम किया। अच्छा, 115 BAC और BAD वालों पर AMT नहीं लगता, ये वो इंडिविजुअल HUF को ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन में अगर आ गए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन में आ गई, उन पे AMT नहीं लगेगा। और यहाँ पर भी वो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैट का क्रेडिट था, और यहाँ पर भी लिख दिया अगर BAC में आ गए और BAD में आ गए तो यहाँ पर क्रेडिट आपका जो है वो लैप्स हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो पुराने सालों का जो भी क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा। लॉजिकल बात है, जब आप ये सेक्शन नहीं लगता।
तो बेसिकली क्या है बेटा, एएमटी का कॉन्सेप्ट नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी लोकल अथॉरिटी के लिए है। तीनों में से या तीनों डिडक्शन लेते हो या एक लेते हो, और तीनों डिडक्शन हटा के और डेप्रिसिएशन जो मिलता नॉर्मल प्रोविजन वो माइनस करके आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर। ये पॉइंट फर्म के लिए लागू नहीं हो गया जी, हो गया जी। टाइम टाइम फिश। नाउ my dear friends, we are coming to the last chapter of today's syllabus, that is chapter number 17, जिसमें तीन चीजें, जहां तक मुझे लग रहा है आज हम ये फिनिश करते हैं, ये फिनिश करते हैं असेसमेंट्स का टॉपिक, और जो मिसलेनियस का टॉपिक है वो हम कल कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ये हियरार्की है दोस्तों, हियरार्की है हमारी इनकम टैक्स के अंदर। सबसे ऊपर सीबीडीटी 116 सेक्शन कहता है, सबसे ऊपर सीबीडीटी, फिर डायरेक्टर जनरल या चीफ कमिश्नर डीजीआईटी या सीसीआईटी सबसे उसके नीचे, फिर आपका उसके नीचे डायरेक्टर या डीआईटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या सीआईटी या सीआईटी अपील्स। देखो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और ये डायरेक्टर। अच्छा, जैसे कमिश्नर शब्द है ना, ऐसे डायरेक्टर होता है। सर क्या होता है डायरेक्टर? अरे कमिश्नर फ्रंट में होता है, डायरेक्टर बैक में होता है। एक ही थाली के है ना, एक जैसे हेड और टेल होते हैं। तो कमिश्नर साहब सामने होते हैं, बैक में डायरेक्टर होते हैं। नीचे एडिशनल डायरेक्टर एडीआईटी या एसीआईटी या एसीआईटी अपील। वैसे अब ये पोस्ट हटा दी गई है, यस, एडिशनल डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है ये पोस्ट हट गई है। हाँ जी, हाँ, ये पोस्ट अब डिलीटेड है। जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट जेसीआईटी या जेडीआईटी, ये याद करना। डेप्टी डायरेक्टर, ये एसीडीसी, ये दोनों को एक लेवल पे कर दिया। तो ये है बेटा डीडीआईटी डेप्टी डायरेक्टर, हाँ, या डीसीआईटी डेप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब डेप्टी कमिश्नर अपील्स नहीं होता, शायद मेरी नजर में वो नहीं होता। तो बड़ा इजी है, चार्ट अभी बता देता हूं, मैं को सरल करके भी बताऊंगा। और ये एडीआईटी या एसीआईटी, फिर आईटीओ इनकम टैक्स अफसर, टीआरओ टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इंस्पेक्टर। तो अगर मैं बोलूं सिंपल चार्ट बनाना है बेटा, सबसे नीचे इंस्पेक्टर साहब, टीआरओ साहब, टीआरओ, उसके ऊपर बेटा आईटीओ, उसके ऊपर एसीडीसी, उसके ऊपर जेसी जॉइंट कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर चीफ कमिश्नर। ये एक सरल चार्ट है, आपको ये याद करोगे। फिर डेप्टी डायरेक्टर, फिर कमिश्नर को डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर को एडिशनल, जॉइंट डायरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, हाँ, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर। तो ये चार्ट याद कर लो। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, सीसीआईटी लो, और सिंपल सीआईटी, जेसीआईटी, एसी, डीसीआईटी, आईटीओ, टीआरओ और इंस्पेक्टर। ये लो, ये सरल चार्ट है बेटा हियरार्की के लिए। और इसके आप डायरेक्टर्स जो बैकडोर वाले हैं ऐड कर सकते हो। सीसीआईटी डेप्टी डायरेक्टर, सीआईटी डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्टी कमिश्नर डेप्टी डायरेक्टर। हो गया, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है एज सच पर्सन टू बी द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इसका नियुक्ति का काम बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कुछ सीबीडीटी की पावर्स हैं, पढ़ना, रूल्स बनाएंगी, इंस्ट्रक्शंस देंगी, मैंडेटरी प्रोविजन रिलैक्स कर सकती हैं, कोई रिफंड की एप्लीकेशन लेट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि किसके पास क्या एरिया होगा, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं आपकी किसी और को, यस, कोई अथॉरिटी मांगे। ऐसे ही बेटा ये आपकी डीजीआईटी डायरेक्टर की पावर, डायरेक्टर जनरल की पावर, प्रिंसिपल डायरेक्टर की पावर, ये सब कुछ पावर्स हैं जिसमें ज्यादा तवज्जो। चीफ कमिश्नर की पावर, सीसीआईटी या कमिश्नर की पावर, ये ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपॉइंट करेंगे बिलो एसीआईटी,
पावर ऑफ एओ डिप्टी कमिश्नर को देनी, ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूँ ये सीआईटी की पावर्स, सीआईटी अपील की पावर्स, डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, इंफॉर्मेशन मंगवाना, कंपनी का रजिस्टर इंस्पेक्ट करना, सेट ऑफ रिफंड, आपका एरियर्स ऑफ टैक्स पड़ा है, रिफंड सेट ऑफ कर लिया उससे, अपील्स को डिस्पोज करना। यस, अपील्स को डिस्पोज तो करेगा ही, है ना। ये तो सिंपल बात है। अच्छा, जो अहम बात है ना वो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में ना रिटर्न का चैप्टर समाप्त करूंगा, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं आईटीआर। यस दोस्तों, ये कच्चा चिट्ठा होता है सारा लेखा जोखा जो आपने किया, आपके कर्म आप गवर्नमेंट को बताते हो। किसको रिटर्न भरनी है बेटा? एवरी पर्सन, चाहे कंपनी और फर्म, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कंपनी और फर्म के लिए मैंडेटरी फाइलिंग है। यस, कंपनी और फर्म के लिए मैंडेटरी फाइलिंग है। तो कंपनी एंड फर्म irrespective of income, irrespective of income they have to file the return, irrespective of income they have to file the return. I hope you getting my voice. एक बार बताइए जरा दोस्तों, irrespective of income रिटर्न फाइल करनी। और नॉन कंपनी नॉन फर्म को जब फाइल करनी है, अगर जीटीआई बिफोर एग्जेम्पशन 1030, अब 1038 तो डिलीट हो गया, और बिफोर 54 सीरीज एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट। क्या मतलब दोस्तों? रामलाल साहब है, रामलाल साहब है, ठीक है। और रामलाल साहब की जीटीआई, जीटीआई छोड़ो भैया, लो इनके पास एक तो पीजीबीपी है, एक तो पीजीबीपी इनकम है, कितनी सर? 1 लाख। और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख का, जो उन्होंने 54 सेक्शन में, ये 54 सीरीज लिखवाया है मैंने, 54, 54B, 54EC, सब कुछ मिलाकर सारी 54 के सीरीज आ गई। ये 5 लाख की ले लेते। अच्छा, जीटीआई इनकी है 1 लाख, माइनस 80C 50,000, टीआई 50,000। बताना बेटा इसको रिटर्न फाइल करनी नहीं करनी? बताइए, बचाओ बच्चों, इसको रिटर्न फाइल करनी नहीं करनी? बताइए। तो पीजीबीपी 1 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, 54 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करवा लिया। जीटीआई मेरे बच्चों 1 लाख रुपए है, 80C 50,000 रुपए है, टीआई 50,000 रुपए। बताओ जी, इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न? करो जरा, इज ही फाइल रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न? इज ही लायबल टू पे टैक्स? नो, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। इज ही लायबल टू फाइल रिटर्न? बताइए, इज ही लायबल टू फाइल रिटर्न? बताइए। यस सर, हम जीटीआई बिना एग्जेम्पशन लिए, तो जीटीआई ले लो सर जी। जीटीआई कितनी है? 1 लाख रुपए। अब एग्जेम्पशन नहीं लेता तो जीटीआई कितनी हो जाती? 6 लाख रुपए। जीटीआई बिफोर 54 सीरीज, ये लेना है जी सर, वो आ गई 6 लाख रुपए। और सर एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, चाहे एग्जेम्पशन 2.5 की ले रहे हो, 3 की ले रहे हो, 5 की ले रहे हो, या 115 बीएससी में 2.5 की सभी के लिए है, तो भैया ये तो फिट केस है रिटर्न फाइलिंग। समझ गए? तो जीटीआई बिफोर 54 सीरीज, ना टीआई नहीं देखना। 54 सीरीज की एग्जेम्पशन लेने से पहले कितनी जीटीआई आती, तो एक बार एग्जेम्पशन ऐड कर दो, तो जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2 केसेस में मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है भाई। इनकम जीरो हो, रिटर्न फाइल करनी है। कौन? आरओआर, ठीक है, जो और किसी प्रोविजन में नहीं आया। उसके बाद फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन बैंक अकाउंट है, फॉरेन सिक्योरिटीज हैं, उसको रिटर्न भरनी भरनी, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, बताना पड़ेगा। क्यों? हम देखना चाहते हैं भाई विदेश का संपत्ति लेके क्या कर रहा है। तो एनी एसेट या कोई इंटरेस्ट, कोई शेयर होल्डिंग, कोई डिवेंचर्स आउटसाइड इंडिया की है। दूसरा, जिसने खर्चे दबा कर किए, हाँ जी, जिसने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर करंट अकाउंट में जमा करवाया, या बैंक में जमा करवाया ना, करंट अकाउंट में who has deposit aggregate exceeding 1 करोड़, एग्जैक्ट 1 करोड़ नहीं, एक्सीडिंग 1 करोड़, या खर्चा एग्रीगेट किया है 2 लाख का अपने ऊपर या दूसरों पे विदेशी भ्रमण पर, या बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर का आया है, तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हम कहते इतना मोटा खर्चा कर रहा है भाई, पैसे कहां से आ रहे? नेक्स्ट,
रिटर्न फाइलिंग के लिए मेरे बच्चों ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जो आप एंटर करते हो उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी पड़ती है कि क्या आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पर परचेज सेल करी है, और वो रिपोर्ट 30 नवंबर तक लेनी है, रिटर्न भी 30 नवंबर। तो 30 नवंबर 2021 ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है उन एसएसीज के लिए जिनको 92 में चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी पड़ती। 92 में चार्टर्ड, कंपनी हो नॉन कंपनी हो, हाँ ये कंपनी भी हो सकता है और नॉन कंपनी भी हो सकता है। अच्छा सर कंपनी हो तो खाली मैं बोलूँ 92 वाली कंपनी हो, 92 वाला गुप्ता जी हो, 30 नवंबर। अगर कोई कंपनी है बेटा डेट देखो 31 अक्टूबर कर दी गई है, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी गई है, याद रखना ये डे अमेंडमेंट है। अदर देन कंपनी, नॉन कंपनीज तुम्हारी ऑडिट होती है, किताबों की स्क्रूटनी होती है, चेकिंग होती है इस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में या किसी और लॉ में, जीएसटी में, कस्टम्स में। तो 31 अक्टूबर कर दी गई है तुम्हारी डेट भी। तो जो कंपनी और ऑडिट वालों की डेट 30 सितंबर थी अब 31 अक्टूबर हो गई है। अगर आप पार्टनर हैं फर्म में और फर्म की किताबें ऑडिट होती हैं तो तुम्हें भी 31 अक्टूबर, पहले वर्किंग पार्टनर वर्ड होता था, अब एनी पार्टनर। मेरे बच्चों अगर आप पार्टनर हैं और आपकी फर्म की ऑडिट होती है, आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, आपकी भी 31 अक्टूबर। तो 3 लोगों की 31 अक्टूबर, बाकी सबकी 31 जुलाई जो पहले भी थी। नीचे लिख दिया, वो तो मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात मैंने करी थी। देखो हाँ जी चलिए नेक्स्ट, लेट फाइलिंग की रिटर्न की फीस, सजा फॉर लेट फाइलिंग। देखो जी अगर आप 31 दिसंबर तक फाइल करते हो, यानी कि अगर आप आफ्टर 31/7/2021 फाइल करते हो या आफ्टर 31 अक्टूबर 2021 फाइल करते हो या आफ्टर 30 नवंबर 2021 फाइल करते हो, कब तक भाई? अप टू 31 दिसंबर 2021। तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फीस लगेगी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। अगर आप 31/7 से 31 दिसंबर, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 30/11 से 31 दिसंबर के बीच में लेट हो गए, इसको लेट रिटर्न, ले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू, बिलेटेड रिटर्न की पेनल्टी है बेटा ये। अच्छा और अदर केस, अदर केस का मतलब 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21, क्योंकि रिटर्न जा ही सकती है असेसमेंट ईयर के एंड तक। तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी अगर आप, जैसे अभी रिटर्न जारी है 31 जुलाई को, नहीं भरते दिसंबर तक भर दो 5, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 10। अच्छा अगर तुम्हारी टोटल इनकम ही 5 लाख तक है तो आप 31 मार्च तक 2021 तक कभी भी रिटर्न भर सकते हैं, पेनल्टी 1,000 रुपए की लगेगी मैक्सिमम। तो जो लोग 5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं वो तो रिटर्न भर ही दें जल्दी से जल्दी टाइम से, क्योंकि अल्टीमेटली 5 या 10 की पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो लोग 5 तक कमाते हैं वो 31 दिसंबर तक भरे असेसमेंट ईयर, 31 मार्च तक भरे, 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगाई चाहिए। रिटर्न ऑफ लॉस बेटा ये हमने जब हमने सेट ऑफ लॉस किया था ना, कि लॉस का कैरी फॉरवर्ड चाहते हो, कौन कौन से लॉसेस? बिजनेस प्रोफेशन लॉसेस 72 वाले, 73 वाले, 73A वाले, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन लॉस 73 में आ गया, बिजनेस लॉस 72 और 73। 73 है सर कौन सा? अरे बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। 72 है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, और बच्चों 73 है स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेकुलेशन 73। अच्छा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस आ ही गया, लो जी, तो ये 72 का आ गया, ये 73 आ गया। मैं पहले अलग से लिख रहा था, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से हटा ही देता हूँ बेटा। तो ये मैं ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, कंफ्यूजन ही ना हो जाए आपको बेकार में। लो जी, तो 72 वाला जो है नॉन स्पेसिफाइड लॉस, ये स्पेसिफाइड। कैपिटल गेन 74, ओनिंग एंड मेंटेनेंस 74 है। तो आपको लॉस के रिटर्न 139(1) DDR तक फाइल करनी है। एक दिन भी लेट हो गए, एक दिन भी लेट हो गए,
एक दिन भी लेट हो गए, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रॉफिट की रिटर्न लेट हो सकती, लॉस की एक दिन भी नहीं। हाँ आइए जी, क्या कह रहे हैं जी, लॉस रिटर्न नॉट फाइल ड्यू डेट, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सेट ऑफ कर सकते हो इस साथ। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, हाँ 32 सेक्शन का है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आपने रिटर्न लेट करी। एचपी का लॉस 71B में है, वो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये दोनों ही कवर्ड नहीं है 139(3) में, तो एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, रिटर्न लेट फाइल करी, और डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेट रिटर्न फाइल करी। लेकिन बेटा बिजली गिरी, बिजली गिरी किन पे गिरी, 72 पे गिरी, 73 पे गिरी, 73A पे गिरी, 74 पे गिरी, और 74A, 5 पे बिजली गिरेगी अगर लेट हो गए। नेक्स्ट, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2021। दोस्तों हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 21-22। गवर्नमेंट कहती है भाई ड्यू डेट 21-22 में आ गई है ना, आप अपने रिटर्न असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल कर सकते, एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है बेटा 31 मार्च 2021। लेकिन उससे पहले ही असेसमेंट हो गई, जिसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बैंड बाजा बारात, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई। कौन से सेक्शन में दोस्तों, अंडर सेक्शन 144। तो फिर वहां तक अगर आपकी बेस्ट जजमेंट कब तक हो गई, 28 फरवरी 21, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं भरी थी, नोटिस भी आया था, आप नोटिस को फिकर को धुएं में उड़ाते ना, जैसे आपने बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, आपका नोटिस भी आया रिटर्न फाइल करने के लिए, आपने कोई नजरअंदाज कर दिया, तो अब आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई तो अब रिटर्न फाइल करके होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो रिटर्न फाइल कब तक कर सकते हैं, अगर बेटा 139(1) का टाइम लिमिट, या गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया 142(1) में गवर्नमेंट का नोटिस आता है, गवर्नमेंट का नोटिस आता है, वहां तक रिटर्न फाइल करो। नहीं फाइल कर पाते, टेंशन ना लेना, 31 मार्च तक 21 तक फाइल कर देना। लेकिन उससे पहले अगर बैंड बाजा बारात बेस्ट जजमेंट हो गई है तो उससे बात, रिटर्न रिवाइज कर सकते हो क्या, हाँ जी, रिटर्न फाइल करी है 139(1) में और 4 में, लेट रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, यस, और टाइम वाली भी फाइल हो सकती है, यस, क्योंकि 139(1) है टाइम वाली, 139(4) लेट वाली। लेकिन कब तक, एंड ऑफ, ये 1 काटो यहां पर, एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ रेलेवेंट 31 मार्च 21, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, यहां पर 2 असेसमेंट हो सकती हैं जो कंप्लीट हो गई, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144, और मेरे बच्चे स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3), विच एवर इज अर्लियर। तो 31 मार्च 21 से पहले अगर स्क्रूटनी या बेस्ट जजमेंट हो गई तो वहां तक, भाई लॉजिक की बात है ना, मैं आपसे टेस्ट मंगवा रहा हूँ, मैंने कहा 31 मार्च तक टेस्ट दे सकते हो आप। आपका आंसर शीट वैसे तो आपको जुलाई में देनी है, अक्टूबर में देनी है, आप 31 मार्च तक दे दो, लेकिन मुझे दिल्ली से बाहर जाना था, अब मैं 31 मार्च तक वेट कोई करूंगा तुम्हारे आंसर शीट की, मैंने आंसर के मार्क्स खुद ही निकाल दिए तुम्हारे, तो मैंने शीट नहीं दी, मैंने मार्क्स अपनी जजमेंट लगा के दे दिए, तो अब आप शीट देने आए, मैंने कहा पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो रिटर्न रिवाइज बिलेटेड भी हो सकती है, टाइम वाली भी हो सकती है, 31 मार्च तक हो सकती है, उससे पहले बेस्ट जजमेंट या स्क्रूटनी ना हुई हो। अच्छा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 139(4) में रिटर्न भरेंगे, 139(4)B में पॉलिटिकल पार्टीज भरेंगी, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा रिटर्न के फॉर्म्स भी, और 139(4)C में जो सेक्शन 10 की एग्जामिशन लेते हैं, और ये रिसर्च एसोसिएशन 139(4)D में, ये चारों का एक क्रक्स है। क्या क्रक्स है, ये चारों रिटर्न जब भरेंगे जब बिना एग्जामिशन के इनकी टोटल इनकम बिफोर एग्जामिशन। सर कौन कौन सी एग्जामिशन लेते हैं ये, अरे चैरिटेबल एग्जामिशन 10, 11, 12 में लेते हैं, वो एक्सीड करे एग्जामिशन लिमिट से, पॉलिटिकल पार्टी 13A में लेते हैं, 10 वाले 10 में लेते हैं सर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 10 में भी आती है एनजीओ, और रिसर्च एसोसिएशन इनके लिए सेक्शन 10 एग्जामिशन नहीं है, ये कहीं और नहीं है, तो यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ेगी। यस, 139(6) में कह सकते हैं कि आपको रिटर्न के फॉर्म में एग्जेम्प्ट इनकम की कॉलम आ सकता है, आपसे एसेट्स एक पर्टिकुलर नेचर के ऊपर हैं उसकी डिटेल मांग सकते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल मांग सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग सकते हैं, कोई खर्चा एक लिमिट से ऊपर क्या उसकी डिटेल मांग सकते हैं, तो 139(6) हमारे लिए नहीं है,
ये कह रहे हैं कि 139(6) के अंतर्गत आपसे इन चीजों की डिटेल मांगी जा सकती है। डिफेक्टिव रिटर्न दोस्तों, दाल में काला है तो उस काले को दूर करना है। रिटर्न आपने ढंग से फॉर्म में नहीं भरी है, सारे कॉलम नहीं भरे हैं, तो एओ प्रेम पत्र देगा, प्रिय आके 15 दिन में डिफेक्ट ठीक करो। आप नहीं कर सकते तो टाइम 15 दिन का और एक्सटेंड कर देगा, तो 15 से प्लस 15 30 दिन में डिफेक्ट ठीक कर दो। नहीं डिफेक्ट किया तो वॉइड अब इनिशियो मानी जाएगी, ये माना जाएगा कि आपने फाइल नहीं करी। और अगर रिटर्न पे साइन ही नहीं किया तो वो तो वैसे ही इनवैलिड है, उसको वॉइड के, जब आटे में नमक होता है तो आटा है ही नहीं तो नमक लेके क्या करोगे। ये साइनिंग ऑफ रिटर्न है बेटा। साइनिंग पहले तो फिजिकल साइनिंग होती थी, अब आपको मैनुअली साइन करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना है, या डिजिटल सिग्नेचर लेना है, या ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। कौन करेगा? इंडिविजुअल में खुद करेगा, इंडिया में नहीं है तो खुद करेगा, ऑनलाइन कर ले, या ऑथराइज पर्सन। मेंटली इनकैपेसिटेटेड लीगल गार्डियन साइन करेगा, चाहे फिजिकल साइन हो या मैनुअल या ऑनलाइन हो या डिजिटल सिग्नेचर हो। अदर रीजन ऑथराइज पर्सन। पार्टनरशिप में कौन करेगा भाई? पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर करेगा, अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या किसी कारण मैनेजिंग पार्टनर साइन नहीं कर सकता, एनी पार्टनर नॉट बीइंग माइनर। और एलएलपी में लिखा है जी डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है एनी पार्टनर और प्रिस्क्राइब पर्सन। ये प्रिस्क्राइब पर्सन आई सपोज दोनों पॉइंट के लिए नया अमेंडमेंट आई है कि अगर ये चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी, एक सेकंड बच्चों, कि मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, इफ ड्यू टू मैनेजिंग पार्टनर कैन नॉट साइन, एनी मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो एनी पार्टनर। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड दोस्तों। इनकम टैक्स इंडिया पे जाकर, आज इनकम टैक्स की वेबसाइट चल नहीं रही है दोस्तों, इनकम टैक्स वेबसाइट यू नहीं, दे आर लॉन्चिंग इनकम टैक्स वेबसाइट, लेट अस सी 2020। और बेटा हाँ जी, आज ये चल नहीं रही है, तो मैं एक काम और करता हूँ, मेरे पास इनकम टैक्स एक्ट भी है, हम इसको 140 सेक्शन बेटा, 140 सेक्शन, एक सेकेंड बस, आज ज्यादा मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन सिलेबस भी खत्म करना है थोड़ा सा, इसलिए मेरे साथ बियर करें। ये एनी पर्सन वाला जो अमेंडमेंट आई है, प्रिस्क्राइब पर्सन, देखो 140 सेक्शन पे पहुंचते हैं जरा बेटा, एक सेकेंड। अच्छा अभी तो पीछे हैं हम, 140 पे पहुंचते हैं। इस सेक्शन पे पहुंच गए, यही नहीं पता चल रहा, इतनी बड़ी पीडीएफ है भैया। आ गया जी, 140 पे आ गए, आ गए, आज आ जाइए, आ जाइए मेरे बच्चों। वन फोर्टी ये नई बात जो आई है ना, ये कंपनी में तो एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब, कंपनी में भी लिखी है बात, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, कंपनी में प्रिस्क्राइब पर्सन डाला गया है, और फर्म में एलएलपी में डाला गया है। सही है जी, बिल्कुल सही है, हमने बुक में सही लिखा है। आ जाओ बच्चों, तो दोबारा से आ जाओ बच्चों। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, और मैनेजिंग पार्टनर नहीं साइन कर सकता या किसी कारणवश तो एनी पार्टनर माइनर ना। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी पार्टनर या प्रिस्क्राइब पर्सन, गवर्नमेंट रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई ये भी साइन कर सकता है। मैं रूल चेक कर रहा था, मिले नहीं मुझे, अगर मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी डायरेक्टर या प्रिस्क्राइब पर्सन, प्रिस्क्राइब पर्सन, ये भी नई बात आई है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। कंपनी नॉन रेजिडेंट है तो ऑथराइज पर्सन, कंपनी बाउंड अप हो गई लिक्विडेटर, कंपनी की मैनेजमेंट सरकार ने ले ली प्रिंसिपल ऑफिसर, और अगर कंपनी की कंपनी की जो प्रोसीडिंग्स है वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में आ गई हैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो नियुक्त किया गया है। एचयूएफ में कौन साइन करेगा बच्चों? करता एब्सेंट है, मेंटेन कैपेसिटी एनी एडल्ट मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी में सीईओ,
local authority principal officer, AOPBO में any member या principal officer and any other assessee by that person to competent to act on his behalf. बेटा परमानेंट अकाउंट नंबर किस किस को अप्लाई करना है? बेटा अगर तुम्हारी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, टोटल सेल 5 लाख से ऊपर है, रिटर्न फाइल करनी है 139(4)A में, या तुम नॉन इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर तुमने एंटर करी है, या तुम उस नॉन इंडिविजुअल के MD हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ट्रस्टी हो, कर्ता हो, फाउंडर हो, तो तुम्हें रिटर्न फाइल करनी पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। 1, 4 और 5 में आपको 31 मई तक 31 मई तक फाइल करना पड़ेगा, 31 मई तक पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। 2 और 3 में आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 21 और 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर का था 31 5/21। और अगर पैन नंबर एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑन इंटीमेट को कोटिस पैन, और जिसको अलॉट नहीं किया गया पैन लेकिन आधार नंबर है उसके पास, तो वो अपना आधार नंबर बता दे पैन के बदले में, और उस पर्सन को सरकार पैन नंबर अलॉट कर देगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट पैन और आधार को लिंक कर चुकी है। और अगर आपके पास पैन है और आपने अपने आधार नंबर बता दीजिए, तो हम मे फर्निशेस आधार नंबर इन ल्यू ऑफ पैन, तो फिर आपको पैन की जरूरत नहीं है बताने की, आधार नंबर ही कोट करते रहिएगा। पर ये जरा, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑन इंटीमेट और कोट इज पैन and who has not been allotted PAN but allotted or possesses Aadhaar number may furnish his Aadhaar number in lieu of the PAN। आधार भी बता दीजिए क्योंकि आधार बना रहे हैं, एंड बायोमेट्रिक्स भी हैं तो उसको डुप्लीकेट करना मुश्किल है। एंड सच पर्सन शैल बी अलॉटेड पैन, तो उसको सरकार पैन अलॉट खुद करके देगी, उसको सच पर्सन को पैन अलॉट करके देगी। और जिसके पास पैन है और अपना आधार नंबर बता चुका है, तो वो आधार आगे से बता सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर आपको अपना जहां पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ता है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, पढ़ लीजिएगा। सेल परचेज मूल प्रॉपर्टी 10 लाख से ऊपर, ये सब आपको थोड़ा सा याद करने वाली बातें हैं जहां पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ता है। अच्छा, ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब 139B क्या कहता है? स्कीम ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू TRP। ये दोस्तों जो बेरोजगार लोग होते हैं, गवर्नमेंट सोचती है कि चलो कुछ हम उनको अपनी तरफ से ट्रेनिंग देके कुछ उनको पैरों पे खड़ा करें, तो ये कॉन्सेप्ट वही है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो ग्रेजुएट लोग होंगे उनको हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर TRP की स्कीम के अंतर्गत लेके आएंगे और उनको हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के काबिल बनाएंगे, तो वो लोगों की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन 2 लोग TRP के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवा सकते, कंपनी वाले लोग, क्योंकि उसमें ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंटेड होता है, या जिसके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं अंडर एनी लॉ। तो चाहे नॉन कंपनी ऑडिट वाले, वो लोग TRP के थ्रू हायर नहीं कर सकते TRP को। जनरल रिटर्न कौन भरता है? या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स एडवोकेट, तो उनको तो वही हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये स्कीम बनाई गई है। और TRP का सर्टिफिकेट CA को नहीं मिल सकता, एम्प्लॉय को नहीं मिल सकता, या सिविल कोर्ट का एडवोकेट है उसको नहीं मिल सकता। यस, ये बात याद रखिएगा। कोटिंग ऑफ द आधार नंबर, ये मैंने आपको पहले बताया। एवरी पर्सन इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार shall quote Aadhaar number in the PAN application in the return of income, provided where the person does not possess Aadhaar number, enrollment ID of the Aadhaar application form shall be quoted. Every person who has been allotted PAN up to 1/7/17 who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as is prescribed on or before the date notified। वो डेट अप कर दी गई 31 मार्च 21। and provided failure to intimate Aadhaar number, पैन नंबर अलॉटेड शैल बी मेड इनऑपरेटिव, यानी कि उसको कैंसिल करेंगे, उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे 1/4/21 ऑन। तो अपना आधार नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो मैं अब आपसे, यस दैट्स इट फॉर टुडे, इतना आई थिंक आपके लिए काफी है आज के लिए। और उसके बाद ये असेसमेंट्स का काम मैं स्टार्ट करूंगा कल का जो हमारा एजेंडा है मैं आपको बता दूं। असेसमेंट्स, यस, एग्जेम्प्ट इनकम्स, तीसरा TCS एंड सम मिसलेनियस इश्यूज। तो लगभग कल 2 घंटे की क्लास के अंदर असेसमेंट्स आधा घंटे का टाइम, एग्जेम्पशंस हमारा अप्रोक्स हाफ एन आवर, TCS अप्रोक्स 10 मिनट्स, एंड देन रिमेनिंग विल कम टू कंप्लीट
मिसलेनियस इश्यूज। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो आप मुझसे प्लीज चैट बॉक्स पे हाथों हाथ अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज आई टेक योर लीव